Very good evening, one and all. Please reply in the chat box. Everything is fine. And guys, I'm requesting to all those who are listening me, please आपके जो ग्रुप है उसके अंदर रिप्लाई कर दीजिए कि सेशन हैज बीन स्टार्टेड. सो आई थिंक कई सारे स्टूडेंट्स होंगे वो वेट कर रहे होंगे हमारी रिप्लाई की कि सर क्लास चालू हुआ कि नहीं. सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल, प्लीज आप अपने अपने ग्रुप के अंदर एटलीस्ट मैसेज कर दीजिए कि सेशन स्टार्टेड. इन नेक्स्ट 3-4 minutes विल स्टार्ट द क्लास. A very good evening to one and all. I hope my voice is properly audible. We will wait for next few minutes before we start the session. Thank you, Mansi. We'll start the session in next few minutes. Kalpesh sir, Ankur sir, and if someone from e-coaching team can help to just share a quick reminder in the groups that we are starting the session in next few minutes.
Good evening everyone. Good evening. Yes, I can see your ping. Good evening, good evening. हम लोग apart from class ऐसी sessions we do very rarely. So I thought it's very much necessary. Good evening and good evening, Yash. Good evening. I hope the game is on. I hope the game is on for everyone. It's 9:03. We'll be starting the session max by 9:05 as we are waiting for more students to join in. Okay, a very good evening to one and all, and I think we are all set to start the session. And I welcome you all again for this particular session. And as yes, good evening, good evening. और जैसा कि हमने session का ये जो नाम रखा है, the game is on. And very specifically, what I've done here is I've just had few question marks here. So the first thing which I want to ask all of you, is the game on? Is the CAT preparation on? Right? सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है या फिर हताश हो गए हो, निराश हो गए हो, स्कोर नहीं आ रहा है? मुझे फटाफट पहले चैट बॉक्स के अंदर जाना है कि इज द गेम ऑन? राइट? या मानसी, आई हैव डिस्कस्ड दैट. यस, इज द गेम ऑन? क्या हम लोग अभी भी जो लक्ष्य लेके चले थे, क्या वो लक्ष्य अभी भी हमारे पास जिंदा है, या फिर हम लोगों ने उस लक्ष्य को थोड़ा ठंडा कर दिया है, या उस मोटिवेशन को थोड़ा ठंडा कर दिया है? शिवम, ओके, वी विल मोटिवेट यू, डोंट वरी एट ऑल, विल देयर. सर मॉक में नंबर नहीं आ रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. It is on, sir, but not good. Okay, fine. We'll talk about it, Sakshi. We'll talk about it, Shamvi. Good, guys, quickly. For how many of you the game is on, and if the game is on, what exactly? Sir, VARC, not confident. Sir, शायद हम mocks तो दे रहे हैं. Quants, we are dumb. Okay, fine. Okay, quickly, very good. Too much negative in VARC. Quant, Shamvi, sir बोल रही है हमारा हमेशा से ही था. Sir, it's on, but mock में score नहीं आने के लिए तो बुरा लगता है. फीलिंग डीमोटिवेटेड, मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, LRDI वीक आ रहा है. वेरी गुड, कीप इट कमिंग, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर. गुड, सेम हियर. VRC नॉट एनकरेजिंग. मॉक में ही नहीं आते हैं, बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है. ओके, खुशी सापरा, फाइन. VRC में स्कोर स्टैग्नेंट हो रहा है सर. ओके, वेरी गुड, नाइस. सर आप कैसे वेरी गुड कर रहे हो? कॉन्ट नहीं आया तो DR भी नहीं आता है. LRDI नॉट एबल टू सॉल्व, सर. ओके, साइलेश सर, आई होप आप लोगों तक ये आवाज पहुंच रही होगी. अंकुश सर, आई होप आप लोगों तक ये आवाज पहुंच रही होगी. फेसिंग डिफिकल्टी इन LRDI एंड कॉन्ट्स, आई होप आप लोग ये सारी चीजें देख रहे होंगे. Good, guys, good. What else? Quickly, keep it coming. It's very encouraging, to be very honest with you, to understand that you can communicate the same with your faculties. हमारे को बहुत ज्यादा ये encouraging लगता है that at least इसको balance कैसे करें, ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं. Oh, bye, very good. Okay, राम पुकार, fine. ठीक है, guys. So fine, I got your concern. तो मेरे पास concern as expected when we were. So अभी मैंने PPT नहीं बनाई है, right? अभी मैंने PPT नहीं बनाई है. PPT हम लोग बना चुके थे, right? And main problem is coming in reading comprehension. Rest is going good. So ये PPT मैंने अभी नहीं बनाई है. इसका reason क्या है कि मैं जो चीजें लिख रहा हूँ तो शायद मुझे पता था कि तुम्हारी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. And when three of us sat together and we were like, we should have this session for the students because we see. And the main reason, you know what was the main reason? To be honest with you, जो आप लोग बोल रहे हैं मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. The main reason which when we sat and we came up with session was only 40 students attending the mock. Only 40 students attending the mock, right? कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. That's where the thing which came up to our mind is let's do this session कि बच्चे मॉक्स क्यों नहीं दे रहे हैं, right? और मुझे पता था जैसे मैं बोलूंगा क्या चल रहा है, मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, LRDI वीक है, क्वांट्स वीक है, तो पहली चीज तो मॉक्स के अंदर क्यों नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता. एंड द आइडिया वाज वेरी सिंपल एंड आई हैव
I have promised Ankur sir and Shailesh sir that let's have this session. और जितने लोग उस सेशन को सुनेंगे वो नेक्स्ट मॉक जरूर देंगे. Guys, will you guys give this next mock? Yes or no? I want all 90 students to answer me. अगला मॉक देने की इच्छा है या नहीं? या शिवम, आई एम सीइंग योर नंबर, मैं तुम्हारा नंबर ट्रैक कर रहा हूं. ऑलवेज सारे लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक है. जितने लोग बोल रहे हैं हाँ सर देते हैं, करते हैं, राइट. दिस टाइम श्योर. वैष्णवी बोल रही है इस टाइम तो मैं दूंगी. राइट. शाम्बी, यस, ओके, डेफिनेटली सर, विल गिव द नेक्स्ट टेस्ट. तो पहली चीज मैं आगे जो चीज बोलने वाला हूं, राइट, I have given all the mock. Yes, जो लोग बोल रहे हैं मुझे पता है, जो लोग आप रेगुलर मॉक्स दे रहे हैं. मैं एक चीज बोल देता हूं, जितने लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, एके सर, यू वांट टू से समथिंग? हाँ सर, इसमें मैं आपको बोल रहा था कि जो आप मॉक टेस्ट का रिक्वेस्ट कर रहे हो, राइट, तो मेरा जो अभी लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैं थोड़ी धमकी दे के आया हूँ. आप अच्छा लगा कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो. मैंने तो बकायदा बोल दिया है कि जो नेक्स्ट मॉक जो आ रहे हैं, पर्सनली आई विल ट्रैक द रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग. वैसे 505 मॉक का मैंने किया हुआ है, रिकॉर्ड आया है, स्कोर एंड एवरीथिंग. बट जो नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट आ रही है वो जो भी स्टूडेंट नहीं लिखेंगे तो मैं बहुत सीरियस नोट्स पे बता रहा हूँ कि उसके बाद वाला कोई भी लेक्चर मैं अटेंड नहीं करने दूंगा. So to be honest with you, मैं ऐसी धमकी नहीं दे रहा हूँ, राइट, बिकॉज VRC के अंदर मेरे पास तो स्टूडेंट्स ही वैसे कम आते हैं, राइट. सो द पॉइंट इज, मैं ऐसी धमकी नहीं दे रहा हूँ. उसका रीजन एक है. पहला चीज, आई वांट एवरीवन टू गिव द मॉक्स, दैट्स पॉइंट नंबर 1. सेकंड इज, जो मेरे को अभी उज्जवल बोल रहा है, यस आई वांट दैट. मॉक्स दो, हमें आपके स्कोर भेजो, वेदर इट इज 20 परसेंटाइल, वेदर इट इज 10 परसेंटाइल और वेदर इट इज 99 परसेंटाइल, राइट. आप हमें अपना स्कोर भेजो. तो ज्योति संतानी, जब आप बोल रहे हो वी वांट पर्सनल मेंटरिंग, we are ready to discuss with you, we are ready to talk to you. आप स्कोर भेजो. देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं, आपको मैं बहुत ही एक नॉर्मल सा एग्जांपल देना चाह रहा हूं. आप एक स्टेप उठाएंगे, 10 स्टेप हम उठाएंगे. आप एक स्टेप उठाइए और मैं आपको बताता हूं, बिकॉज यश, इफ यश इज देयर, इज यश देयर? यश है यहाँ पर. मेरे को लेट मी सी. यस, यश इज देयर. दो तीन यस है तो आई नो. सो यश का मेरे पास स्पेसिफिकली मैसेज आया था कि सर मॉक का सॉल्यूशन का रिकॉर्डिंग जो है हमारे को रेगुलर चाहिए. टू बी ऑनेस्ट विद यू, वी वांट, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं देना चाहते, हम नहीं कर सकते हैं, राइट. इस बार अंकुर सर ने टुकड़ों में दिया है, शैलेश सर अभी आपको शायद संडे तक भेज देंगे. बट द पॉइंट वाज अगेन, द आइडिया इज वेरी सिंपल. आप इतने लोग मॉक दो एंड वी विल मेक श्योर दैट बिफोर इवन आस्किंग वी विल बी एबल टू गिव द सॉल्यूशन. Right, so that adrenaline rush has to be there from our side as well. So the game is on. So अगर आप बोल रहे हैं कि गेम ऑन है तो मैं आपके कुछ कंसर्न आगे रखना चाहूंगा और उसके बाद आई विल पास ऑन द बैटन टू अंकुर सर एंड शैलेश सर. दे विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स. आई एम सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट फॉर यू गाइस. और आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी कंसर्न है आज इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर, बी वेरी ओपन अबाउट इट. लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, राइट. सो हमारा स्टेटस क्या है, हमारे कंसर्न अभी तक एज ऑफ नाउ क्या क्या कंसर्न है. सो मेरे कंसर्न है, देखिए मैंने आपको क्या बोला था, पीपीटी हम पहले बना चुके थे. नॉट एबल टू गेट गुड स्कोर इन मॉक्स, पॉइंट नंबर 1. सर हमारा मॉक के अंदर स्कोर नहीं आ रहा है. सेकेंड इज वेरी लेस प्रैक्टिस डन एज ऑफ नाउ. हम कॉलेज की स्टडीज के साथ मैनेज कैसे करें, ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है. और सोचिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि हमने अगर ये चीजें लिखी हैं तो कुछ सोच समझ के लिखी होंगी, बिकॉज हम लास्ट 10 साल से ये चीज देख रहे हैं. ये होना बहुत स्वाभाविक है. प्रॉब्लम है सारे सेक्शन के अंदर, प्रॉब्लम है. जय माता दी हो रही है सर. आप तो एक सेक्शन बोल रहे हो, हमारे हर सेक्शन के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है. सर taking more time to solve any set or a question, right? So specifically मैं वर्बल के अंदर तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज वर्बल के अंदर तो पेपर देते वक्त हम सब एकदम शेक्सपियर होते हैं, राइट. उस दिन शेक्सपियर की आत्मा हमारे अंदर आती है और सारा पेपर हम लोग करते हैं. बट क्वांट्स और एलआरडीआई का क्या करें, शेक्सपियर तक नहीं बन पाते, ना हम आर्यभट्टा बन पाते हैं. देन सर सिली मिस्टेक्स हो जा रही है, राइट. हम लोग सिली मिस्टेक करे जा रहे हैं. और सबसे लास्ट चीज, अगर मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है, क्या ये होता है या नहीं होता, फटाफट. स्कोर फ्लक्चुएट हो रहा है सर हर टेस्ट के अंदर. वीआरसी के अंदर कभी 80 और कभी आ गए 8. ऐसा तो कैसे, ऐसा तो क्या है सर, वो बताइए. तो हमारा स्कोर फ्लक्चुएट हो रहा है हर टेस्ट के अंदर, डेफिनेटली यस. तो मेरे पास ये कॉमन कंसर्न है जो कि आप सब जितने भी 95 प्लस स्टूडेंट इस सेशन को सुन रहे हैं, और यही ऑब्जेक्टिव लेके हम आज अगले 40 मिनट बात करने वाले हैं आपसे कि क्या रीजन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सो ये प्रॉब्लम, ये कंसर्न बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है गाइस, राइट. सो जब ये सारे कंसर्न आते हैं तो स्टूडेंट का पहला क्वेश्चन, जो ज्योति भी बोल रही है मेरे को पर्सनल मेंटरिंग करना है, ये करना है, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट का आता है, सर स्टार्ट किया था यहां से और अब ऐसा लग रहा है सर कि हमारे को राजू कॉलेज मिल जाएगा, वहां पर भी चले जाएंगे.
हमने स्टार्ट किया था यहाँ से और अब ऐसा लग रहा है हमें राजू कॉलेज मिल जाएगा, वहां भी चले जाएंगे। क्या करें सर इस चीज का, हमें वो सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, सो आर दीज कंसर्न जेन्युइन? क्या ये कंसर्न जेन्युइन है? यू आर स्पीकिंग माय हार्ट, ओके। आर दीज कंसर्न जेन्युइन? बिल्कुल ये कंसर्न जेन्युइन है। जो स्टूडेंट शिद्दत से, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं शिद्दत से, जो स्टूडेंट कॉन्फिडेंस लो हो गया है, आज जब हम इस सेशन को खत्म करेंगे तब हम बात करेंगे इस बारे में, राइट। मैं कुछ एग्जांपल भी आपके सामने रखूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल। जो लोग शिद्दत से प्रिपरेशन करते हैं, देखो मेरी बात समझिएगा, राइट, मेरी बात आप ये समझिएगा। आपको जब डर लगता है या आपको जब एंजाइटी होती है, उसका रीजन ये है क्योंकि आपने इसके ऊपर मेहनत करी है। जिस बच्चे ने मेहनत ही नहीं करी उसको एंजाइटी नहीं होती है। जिस बच्चे ने प्रिपरेशन नहीं करी वो आज इस सेशन के अंदर नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इस सेशन के अंदर ये 30% अटेंडेंस होने का रीजन शायद यही है। और अगर मैं वीडियो लेक्चर्स वालों को मिस कर दूं, मैंने सबको आज बुलाया सेशन को सुनने के लिए, तो इस सेशन के अंदर अटेंडेंस इसीलिए इतनी कम है बिकॉज द रीजन इज यही लोग हैं जो शायद ढंग से पढ़ रहे हैं। और मैं हर बार बोलता हूं, आपकी लड़ाई 2 लाख स्टूडेंट से कभी भी नहीं है, बिकॉज 2 लाख स्टूडेंट इस बात की टेंशन नहीं ले रहे हैं। टेंशन उन लोगों को हो रही है जिन्होंने कुछ टारगेट लिया था और अगर मान लो पढ़ाई नहीं भी कर पाए तो उसके जेन्युइन कंसर्न्स थे, राइट। हम शायद इसलिए मेहनत नहीं कर पाए, बट अब हम चाहते हैं। बट अगर हम चाहते हैं तो क्या क्या हम लोग बोल रहे हैं, अगर हम चाहते हैं इस चीज को करना, तो पॉइंट इज, अब स्टूडेंट का कंसर्न है, क्या सर मैं अभी भी कर सकता हूं? क्या मैं अभी भी कर सकता हूं? वो बताइए, वो स्टूडेंट मेरे से जानना चाह रहे हैं। और मेरा आंसर होगा इस चीज के लिए हमेशा यस, यस, यस और यस। मैं हमेशा बोलूंगा। और सर आप मेरे को ये बोलेंगे, सर ये तो आप हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कर रहे हो। नहीं, मैं कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। देखो, बट इसके लिए आपको मेरे को कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी और आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा। जो जो चीजें मैं, शैलेश सर और अंकुर सर आपसे आज बात करेंगे। सो द पॉइंट इज, क्या मैं अभी कर सकता हूं? द आंसर इज डेफिनेटली यस। मेरे पास अगर मैं आज से ले लूं, लगभग आई हैव क्लोज टू अराउंड 64 to 65 odd days। मेरे पास 64 डेज हैं, मेरे पास 2 महीने हैं करने के लिए। और अगर मेरे पास 2 महीने हैं ये सब चीज करने के लिए, और अगर मैं लेट से अगला 2 महीना अगर मैं ये चीज कर सकता हूं, अगर अगला 2 महीना अगर मैं ये 300 घंटे दे पाता हूं, तो मैं बता रहा हूं आपने जो भी टारगेट किया है वो सब टारगेट आप हासिल कर पाएंगे। बट 300 घंटे आपको देने पड़ेंगे। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, सर मेरा आरसी ठीक हो रहा है बट मैथ्स लो हो रहा है और मैथ्स में हार्ड वर्क करता हूं तो आरसी नीचे जा रहा है। एक बार होल्ड ऑन, मैं मैनेज करेंगे। सो द पॉइंट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बोल रहा हूं 300 घंटे, ये 300 घंटे आपको अपने हिसाब से मैनेज करने पड़ेंगे। रोज का 5 घंटे मान रहा हूं, आपको 10 घंटे की जगह शायद 5 घंटे की नींद सोनी पड़ेगी। मैं मानता हूं आपके पास बहुत ज्यादा समय जो है वो कम है, बट आपको 10 घंटे की जगह शायद 5 घंटे सोना पड़ेगा। तो मेरा आंसर है बिल्कुल यस। आपको शायद मोबाइल त्यागना पड़ेगा, आपको शायद डिस्ट्रैक्शन त्यागने पड़ेंगे। आपको ये चीजें अगर आप त्याग सकते हैं तो हम शायद आगे बात करेंगे। वरना अगर आपको लग रहा है कि सर ये चीजें तो मेरे से नहीं त्यागी जाएंगी, तो आई डोंट थिंक द सेशन इज फॉर यू, राइट। अंकुर सर, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग हियर? तो यस सर, डेफिनेटली सर, जो आप पॉइंट बता रहे हैं कि आई थिंक मेरे पास जो भी आई थिंक अनुष्का एंड और भी एक स्टूडेंट है, जस्ट लेट मी चेक, मोहित करके, जो दोनों का आई थिंक मैसेज आया हुआ है। दे आर सेइंग कि सर मॉक टेस्ट हम लोग नहीं मैनेज कर पा रहे एंड टाइम का इश्यू आ रहा है। तो गाइस, जो प्रैक्टिस है दैट इज ओनली द अल्टीमेट की, राइट। जो आपको प्रैक्टिस ही आपको जिता सकती है। सो मेक श्योर, जो सर बोल रहे हैं, मैं ऑलवेज जो क्लास के अंदर भी बोलता हूँ कि दोस्त, आपको लगता है कि आप 8 से 10 घंटा नहीं दे, गाइस बहुत प्रैक्टिकली सोचो कि आप लोगों को केट्स के अलावा क्या आपकी कुछ प्रायोरिटी हो सकती है। यस और नो, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। केट की एग्जाम के अलावा आपकी कुछ प्रायोरिटी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, प्लीज। जो आपको लगता है कि सर इनसे मेरी कोई बड़ी प्रायोरिटी है नहीं बॉस, राइट। तो अब मुझे आप बता दो कि 24 आवर्स होता है सामान्य, जो मैं एक इंसान की बात करूं, राइट, उसके बाद 24 आवर्स होते हैं, राइट। इस वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। 24 आवर्स में से मुझे आप बता दो कि आपकी प्रायोरिटी केट नहीं है। आपकी प्रायोरिटी में 8 घंटा सोने का निकाल दो। प्रशांत सर 5 घंटा बोल रहे हैं, बॉस मैं 8 घंटा आपको सोने का दे रहा हूं, निकाल दे रहा हूं। तो मुझे आप कैलकुलेशन बता दीजिए, 16 घंटे आप कर क्या रहे हो। साक्षी, I'll talk about it. सर अंकुर सर सबका आ रहा है, कॉलेज 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 कॉलेज।
भाई वो कॉलेज डेफिनेटली आई नो कि कॉलेज होगा दोस्त। हम भी एक टाइम पे इस सिचुएशन से फाइट कर रहे थे दोस्त। कॉलेज मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, 5 घंटे से ज्यादा कॉलेज नहीं होती है मेरे दोस्त। 5 घंटे से ज्यादा कॉलेज नहीं होती है प्लीज। और वो So मैनेज, yes, yes. तो मैं जब देखिए एक एक मेरी करके मेरी एक कॉलेज की जब मैं बात करूं दोस्त, मैं जो लेक्चर चल रहा हुआ था, मैं मैक्सिमम टाइम पकड़ा भी गया हूं। मैं सीट सॉल्व कर रहा था केट की लेक्चर के अंदर। दोस्त थोड़ा तो करना पड़ेगा, 65 डेज। बाकी हमारे पास ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स ही है सभी के पास। यस प्रशांत सर। तो मैं एक चीज जो आप लोगों को बोल रहा था दैट समवन वाज टॉकिंग अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सर 2 दिन तो अच्छे से पढ़ाई होती है, फिर तीसरे दिन वापस ये ऐसा हो जाता है। तो देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आप 2 दिन पढ़ाई करते हैं और तीसरे दिन जब आप डिमोटिवेट होने की कोशिश करते हैं, राइट। मैं ये जो चीज बोल रहा हूँ सबके साथ वाकिफ है, सब चीज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको जो हम आगे बात करने वाले हैं, यू हैव टू टेक टेंजिबल टारगेट्स गाइस। यू हैव टू टेक टेंजिबल टारगेट्स। हमारे टारगेट्स क्या होते हैं, राइट? हमारे टारगेट्स क्या होते हैं? हमारे टारगेट्स होते हैं मैं ये करूंगा, राइट? जो मैं हमेशा बोलता हूं टारगेट्स कैसे करते हैं, मैं ये करूंगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, लेट्स से हम कैसे करेंगे, राइट? सो संध्या और जो भी ये लोग बोल रहे हैं, मान लो लेट्स से मैं 23 सितंबर को, आज प्रशांत सर के सेशन के बाद वीआरसी में स्कोर नहीं आ रहा है, तो प्रशांत सर ने बोला प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में क्या? सो पहली चीज हमने बोला सर मैं आरसी करूंगा। वेरी गुड, वेरी एक्सट्रीम हो गया। आरसी में क्या? आरसी में सर मैं एक पैसेज लूंगा सोशियोलॉजी का या फिर कोई भी डाइवर्स टॉपिक का, और एक और पैसेज लूंगा, ये 2 पैसेजेस लूंगा। ये 2 पैसेज लूंगा, और ये 2 पैसेज कहां से लूंगा? लेट्स से मैं 2 पैसेजेस लेट्स से फॉर एग्जांपल एमएमटी से लूंगा या पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से लूंगा, राइट? तो मैं ये काम करूंगा। उसके बाद अंकुर सर ने बोला क्वांट्स कर लो। क्वांट्स में व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन, और ये सब करने के बाद जब आप नाइट में जब आप सोने जा रहे हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये रिपोर्ट हम में से किसी भी मेंटर को भेजो। यू नेम, आप हम में से किसी को भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पॉइंट इज, ये भेजने का ये नहीं है कि आप हमेशा इसके अंदर मुझे कुछ सॉल्यूशन दे पाएंगे, बट एटलीस्ट जब तुम इधर उधर जा रहे हो या तुमने कुछ इसके अंदर कम किया है, ज्यादा किया है, मेंटर तुम्हारे को 1-2 जो कमेंट देगा, वो कमेंट शायद आपके लिए कारगर साबित होगा कि सर ने बोला है, लेट्स से तुमने बोला मैंने अलजेब्रा किया है, तो अंकुर सर ने जवाब दिया अलजेब्रा में क्या किया है, तुमने बोला लॉग्स। फिर अंकुर सर तुम्हारे से क्वेश्चन पूछेंगे अरिथमेटिक हो गया, नहीं सर अरिथमेटिक में तो दिक्कत है, तो अंकुर सर फटाफट मना कर देंगे लॉग्स मत करो। एम आई राइट अंकुर सर? एम आई राइट? दिस विल मेक सेंस। हाँ यस यस, एंड यही पॉइंट को जो मैं कनेक्ट करूं, आई डोंट नो कि आकार मिस्त्री है क्या इस ग्रुप के अंदर? कैन आई गेट यस और यस, ही नो? इज देयर, ही इज देयर सर, ही इज देयर। आकार मिस्त्री सर, आई रिमेम्बर कि जब मैंने उसकी फर्स्ट टाइम जब मेंटरिंग लिया था, उस दिन से लेके आज तक शायद वो ब्रेकफास्ट करना भूल गया होगा, लेकिन उन्होंने स्केड्यूल मुझे नहीं भेजा है, वैसा दिन नहीं हुआ है सीरियसली। उन्होंने जो डेली स्केड्यूल मुझे भेजता है, एंड आज आई थिंक उसका भी वो क्वेरी होगा ही नहीं। उसका जो स्कोर आता है मैं जो देख रहा हूँ मॉक टेस्ट के अंदर, इट इज ऑल्सो इन कंट्रोल। आई थिंक वो जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो मैं अगेन कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ या किसी को मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा कहने का मतलब है दोस्त कि ये करेंगे तो डेफिनेटली पॉसिबल होगा। करेंगे तो डेफिनेटली पॉसिबल होगा। अभी तक के हिसाब से 3 चीजें मैं जो बोलूंगा। द फर्स्ट थिंग जो अभी तक हम लोग बोल रहे हैं कि अगर आप डिमोटिवेट या ऐसा कुछ कर रहे हैं, एक आप डेली रिपोर्ट भेजना शुरू कीजिए, दैट्स पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आप 300 घंटे का एक प्लानर बनाएं, दैट्स पॉइंट नंबर 2। और तीसरा जो मैं चीज बोल रहा हूं, अभी भी अपने लक्ष्य को, अपने गोल को बना के रखें, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता है कि गोल नहीं होगा। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात अगर करूं, मैं स्टूडेंट्स को 2 तरीके से डिवाइड कर रहा हूं। कई स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं, क्योंकि मुझे पता है, मैंने इन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, राइट? अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं लेट्स से 22A बैच के अंदर, या मैं कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, राइट? बट कई स्टूडेंट मुझे पता है अंग्रेजी के अंदर ठीक ठाक जवाब दे रहे हैं, उनको मैं फोकस क्या कर रहा हूँ, बेटा सॉल्व कर, तू सॉल्व कर, तेरे सॉल्यूशन में दिक्कत आ रही है। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं मेरे को पैसेज समझ में नहीं आ रहा, मैं उनको अभी भी बोल रहा हूँ सॉल्व मत कर, कैट वाले दिन जाके सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है, बट तू रीड तो कर, तू रीड तो कर। दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। शाम्वी, गेट इन टच विद मी, आई विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर। सो व्हाट शुड वी डू? मुझे करना क्या चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए? और आज मैं, शैलेश सर और अंकुर सर हमारे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर आपको बात करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप किस लेवल पे हैं और हम क्या करेंगे। सो पहली चीज, इसको नोट करिएगा, मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर नोटबुक पेन के बिना अगर आप सिर्फ ये भाषण सुनने के लिए आए हैं, तो ये सेशन आपके लिए किसी काम का नहीं है। सो पहली चीज, वेयर आर वी स्टैंडिंग?
सो सर इससे आपके कहने का मतलब क्या है? सो पहले मैं एक चीज बोलूंगा और उसके बाद आई विल एक एक करके हम अंकुर सर और शैलेश सर का भी वो लेंगे मत इसके अंदर क्या है। तो पहली चीज जो मैं बोलूंगा, वेयर आर वी स्टैंडिंग। सो जब मैं वेयर आर वी की स्टैंडिंग की बात कर रहा हूं तो अपने आप इस नोटबुक के अंदर लिखिए कि करंटली मेरे मॉक के अंदर स्कोर क्या आ रहे हैं। अब पॉइंट इज मॉक के अंदर स्कोर क्या आ रहे हैं। अगर आपने मॉक नहीं लिखा तो वैसे ही ब्लंडर है। सो मान लो कोई बच्चा बोलता है सर मेरे स्कोर आ रहे हैं मॉक के अंदर लेट्स से 40 परसेंटाइल, या फिर लेट्स से हम परसेंटाइल को छोड़ दें, मेरे मॉक के अंदर तीनों सेक्शन के अंदर मान लो मैं वीआरसी की बात करता हूं, मेरे वीआरसी के अंदर मान लो मॉक्स आ रहे हैं 2। मान लो मेरे एलआरडीआई के अंदर सर मॉक के अंदर स्कोर, मैं स्कोर की बात कर रहा हूं, आ रहा है 10, और मान लो मेरा क्वांट्स के अंदर स्कोर आ रहा है 8। सो ओवरऑल सर मेरे पास 20 स्कोर आ रहा है। दैट्स माय पॉइंट नंबर 1। सो आपको पहला टारगेट ये देखना है वेयर आई एम स्टैंडिंग। दैट्स पॉइंट नंबर 1, दैट विद रिस्पेक्ट टू मॉक मेरा इस टाइम स्थिति क्या है, पहली चीज, क्योंकि उस हिसाब से आप प्लानर बनाएंगे। दूसरी चीज, ये तो हुआ मॉक की चीज, मैंने कितने टॉपिक्स मेरे हो चुके हैं और उसको मैंने सॉल्व कितना किया है। मान लो मैंने नंबर सिस्टम पूरा क्वांट्स के अंदर कंप्लीट कर दिया है, क्या मैंने नंबर सिस्टम के कम से कम एमएमटी के ऊपर जाके क्या मैं कम से कम 250 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं? अगर नहीं तो कंसर्न है। ठीक है, क्या मैं लेट्स से परसेंटेज के जाके एमएमटी पे या कहीं पर भी जाके कम से कम 500 250 500 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं? नहीं तो कंसर्न है। राइट, इसके अंदर मेरे पास 1 2 3 ये 3 कंसेप्ट मेरे पास रेगुलर प्रॉब्लम आ रही थी कि इन 3 कॉन्सेप्ट मेरे पास क्लियर नहीं है। अगर आपके पास ये 2-3 कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि ये कंसेप्चुअली डाउट है, गेट इन टच विद अंकुर सर, गेट इन टच विद कल्पेश सर। तो एटलीस्ट वहां पर जाके बताइए मुझे इस कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। तो वी विल सी, पॉइंट इज मैं सबको शायद नहीं करा पाऊं बट वी विल सी हाउ इट कैन बी डन। अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर प्रॉब्लम है, वी माइट अरेंज अ एक्स्ट्रा क्लास गाइस, बट द पॉइंट इज इट हैज टू कम फ्रॉम योर साइड। सो मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं? अगर आपको लग रहा है, मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं मेरे को पैरा जंबल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपने कम से कम 200 पैरा जंबल्स या 300 पैरा जंबल सॉल्व नहीं किए अभी तक तो प्रॉब्लम तो आएगी। अब स्टूडेंट बोलता है मैं पैरा जंबल कहां से करूं? अच्छा, मैंने कैट के पैरा जंबल्स काफी कुछ दे चुका हूं आप लोगों को। इसके अलावा आपको अगर पैरा जंबल्स करने हैं, आपके पास ऑनलाइन इतने सोर्सेज हैं, पास्ट ईयर कैट पेपर है, पास्ट ईयर जेड पेपर है, आप कहीं पर भी जाके सॉल्व करो यार, आपको 300 पैरा जंबल आसानी से मिल जाएंगे। राइट, सो द पॉइंट इज this is something, okay Anup, point taken, we'll talk about it, right? So where am I standing? तो आप अपना स्टैंडिंग किस तरीके से देखेंगे? तो आज आप रात को इस सेशन सुनने के बाद पहले अपना मॉक का स्कोर लिखेंगे, दूसरा अपने सॉल्व देखेंगे मैंने क्या क्या चीजें सॉल्व की हैं, तीसरा आप देखेंगे मेरे को कंसेप्ट कौन कौन से क्लियर नहीं है, और इसके अंदर अगेन लाइव क्लास का वीडियो वापस जाके सुनना शुरू करेंगे, और फिर भी दिक्कत है तो आप अपने फैकल्टी से टच में रहेंगे। राइट, सो मैं पहले कंसेप्ट देखूंगा, इसके बाद आई विल अगेन सी। अब इससे होगा क्या? इससे होगा क्या, आप अपने थोड़े थोड़े टेंजिबल टारगेट्स बनाएंगे। अब टेंजिबल टारगेट्स क्या होंगे मैं बताता हूं, सीधा आप 99 पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको लग रहा है मेरे वीआरसी के अंदर 5 नंबर आ रहे हैं तो मुझे एटलीस्ट 2 मॉक और चाहिए, मैं इस 5 को 10 ला सकता हूं। मुझे एटलीस्ट 2 मॉक और चाहिए, उसके बाद मैं इस 10 को 15 पे लेके जाऊंगा। मुझे इसके बाद 7 मॉक और चाहिए शायद इसको 15 से 25 करने के लिए। सो द पॉइंट इज, ये जर्नी आपको जीनी पड़ेगी। 2 महीने हैं आपके पास, 60 दिन है दोस्त आपके पास, वो 60 दिन का प्लान करना पड़ेगा। शैलेश सर, ओवर टू यू, यू वांट टू ऐड एनीथिंग हियर? यस सर, बिल्कुल। सो गाइज, मैंने भी सर बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी भी बात होती रहती है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है स्टूडेंट्स को कि कोई मॉक के अंदर और स्पेशली फॉर एलआरडीआई के अंदर बहुत ज्यादा स्कोर फ्लक्चुएट होता है ना। कभी किसी स्टूडेंट को कभी 20 स्कोर आ गया तो कोई मॉक के अंदर उनका 50 स्कोर हो गया, तो कोई मॉक के अंदर 10 आ गया। राइट, तो गाइज पहले तो सबसे पहले जो प्रशांत सर ने बोला है कि ट्राई टू एनालाइज योरसेल्फ कि आपको दिक्कत कहां पे आ रही है, आपका कौन सा टॉपिक वीक है। आप पहले एनालिसिस करो कि भाई मॉक के अंदर ऐसा तो क्या हो रहा है कि एक मॉक के अंदर मेरे मार्क्स ज्यादा हो रहे हैं, एक मॉक के अंदर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। राइट, तो सबसे फर्स्ट थिंग इज एनालाइज योरसेल्फ। अब यहाँ पे दिक्कत ये होगी है ना, आपने लेट्स एग्जांपल 10 टॉपिक्स लिख दिए एलआरडीआई के, कि 10 टॉपिक मैंने लिख दिया। अब 10 टॉपिक के अंदर टॉपिक नंबर 1 के अंदर मेरी प्रॉब्लम कहां पे है? तो मेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम है। तो अगर मेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम है, देन गो टू द वेरी बेसिक वीडियोस। राइट, ऑलरेडी ई कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे बेसिक वीडियोस है। अगर आपको बेसिक का प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, अगर आपको बेसिक का प्रॉब्लम नहीं है बट सर सैट को हम एक लेवल पे जाके समझ नहीं पा रहे और जो टॉप लेवल के सैट आते हैं उसको टाइम
कम टाइम के अंदर कर नहीं पा रहे, देन फिर यू हैव टू प्रैक्टिस। जैसे प्रशांत सर ने बोला है कि आपको अगर कोई भी टॉपिक के 200 से 300 सेट नहीं मारे भाई, और फिर अगर बोल रहे हो कि मेरी स्पीड नहीं आ रही, तो कैसे आएगी यार। अगर मैं आपको बात करूं कि आपको मैं ना 5 किलोमीटर की 5 किलोमीटर की मैराथन के अंदर पार्टिसिपेट कराऊं, तो क्या पहले दिन 5 किलोमीटर की मैराथन के लिए फर्स्ट डे से आप 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस करोगे? नेवर ना। 5 किलोमीटर की फर्स्ट डे से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप क्या करोगे, पहले दिन 1 किलोमीटर का स्टेमिना बनाओगे, फिर एक वीक प्रैक्टिस करोगे, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, स्लोली ग्रेजुअली विल इंक्रीज योर स्पीड, राइट, और आपका स्टेमिना। सो यहाँ पे भी ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। आपको जो टॉपिक तंग करता है, और वो टॉपिक को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सर कौन सा टॉपिक तंग कर रहा है। तो लेट्स एग्जांपल, आपने ऑलरेडी 5-6 मॉक लिख दिए, और भी आपने मॉक लिखे होंगे, आप और भी सेट सॉल्व कर रहे होंगे। तो लेट्स एग्जांपल, पहला मॉक के अंदर मेरे आए 50 मार्क्स, है ना, या मेरे 40 मार्क्स है। दूसरे मॉक के अंदर मेरे मार्क्स आ गए 20। सर इतना फ्लक्चुएशन कैसे आ गया? ये 50 से मैं 5 पे आ गया, तो इतना फ्लक्चुएशन कैसे आ गया? तो चेक करो कि भाई मैंने मॉक 1 के अंदर किस टॉपिक के सेट आए थे मेरे, राइट, किस टॉपिक के सेट आए थे, वो टॉपिक को देखो। और गाइस हमेशा के लिए क्या ये हो रहा है कि वही टॉपिक आ रहा है, वही टॉपिक मैं कर पा रहा हूं, इसके अलावा कोई और टॉपिक आ गया, यार मेरे मार्क्स गिर जाएंगे। दैट मीन्स जो टॉपिक से मार्क्स आप गेन नहीं कर पा रहे, तो वो टॉपिक के अंदर गड़बड़ है फिर, राइट। सो उस टॉपिक को गो थ्रू दैट बेसिक वीडियोस। अगर बेसिक स्ट्रांग है, आपको प्रैक्टिस करना है, देन LOD 2 और LOD 3 लेवल के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लो। क्वेश्चंस मिलेंगे कहां से? पहले आपको क्वेश्चंस मिलेंगे MMT से, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। MMT नहीं है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑलरेडी मैं बहुत बार क्लास में भी बोल चुका हूं कि 2016 से लेके 21 तक ऑलमोस्ट आपके पास 10 to 15 पेपर्स मिल जाएंगे, है ना। ऑलमोस्ट डिफरेंट एग्जाम्स के भी आप ले सकते हो। 10 to 15 पेपर सॉल्व कर डालो, उसके अंदर भी आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे, राइट। सो अगर आपके मॉक फ्लक्चुएट मार्क्स हो रहे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू एनालाइज कि भाई मुझे कौन से टॉपिक से वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे गए और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। और Okay. इस बार Sally sir, sorry to interrupt अरे you. Yeah. So few things जो मैं चीजें लिख रहा हूँ, ये स्टूडेंट से ही आ रही हैं, और हम जो बोल रहे हैं चीजें मैं आपको लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा once I done with the session. So हमने अभी तक जो बात करी है, डेली रिपोर्ट भेजने की, बेसिक वीडियोस देखने की, रेगुलर इंटरवेंशन, हम ऐसे सेशंस we have planned that we will do more and more of these kind of sessions. And to don't worry, मैं आपको बाकी कॉलेजेस के बारे में भी बताऊंगा, राइट। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन से कॉलेज भरने चाहिए आपके मॉक के बेस पे, कौन से नहीं भरने चाहिए। वन मोर थिंग, अंकुर सर, शैलेश सर ने काफी लोगों को मैसेज किया था, राइट, कि फॉर मेंटरिंग एज वेल, कई लोग मेंटरिंग कर भी रहे हैं। सो हम अभी वी विल कमिंग अप विद द सेशन एज वेल कि आपके किस मॉक में, मैं इसलिए बोल रहा हूं अभी आप तक 5 मॉक हुए हैं, ये 5 मॉक और जाने दो। मैं आपको अक्टूबर मिड में 15 अक्टूबर के आसपास एक और सेशन करूंगा कि आपको कौन कौन से फॉर्म्स भरने चाहिए, नहीं भरने चाहिए। बट यस, वन थिंग इज वेरी कॉमन जो यहाँ पर आ रहा है, आपको सबको एनमेट भरना है, आपको सबको स्नैप भरना है। मैं वापस बोल देता हूं, आप इररिस्पेक्टिव हो आपके जो भी स्कोर आ रहे हैं, आप एनमेट सारे भरेंगे। एनमेट के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं, हमारे पास IBS है, हमारे पास IFIM है, बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं, हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, उसपे कौन कौन से एप्लीकेशंस भरने हैं। आपको एनमेट भरना है, आपको स्नैप भरना है, ये 2 पेपर आप डेफिनेटली भरेंगे विदाउट एनी डिस्कशंस, राइट। ये 2 फॉर्म्स को बिल्कुल आप भरेंगे, ठीक है। कौन सी एग्जाम देनी चाहिए, मैं अगेन बोल रहा हूँ, यश कैट, एनमेट, स्नैप, इन तीनों के अंदर देयर इज नो डिस्कशन एट ऑल, सब भरेंगे। विद इन एनमेट आपको कौन कौन सी चीजें भरनी चाहिए, जैसे कई स्टूडेंट बोल रहे थे हम ये भरे नहीं भरे, मैं इसके ऊपर पूरा एक सेपरेट वीडियो, सेपरेट डिस्कशंस, आई विल टॉक अबाउट दिस एज वेल, डोंट वरी एट ऑल। और मैं एक चीज ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, और आप इसके लिए रेगुलर टच में रहिए, मैं अगेन बोल रहा हूँ। मॉक विकरेट से ज्यादा इनकरेक्ट हो जाते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, कौन सी एग्जाम देनी चाहिए फॉर मेंटरिंग के, कौन से आप ऐप से करना है? साक्षी, गेट इन टच विद मी डायरेक्टली, आई डोंट गेट एनी मैसेज रिगार्डिंग मेंटरिंग। ज्योति संगदानी, कई लोगों को मिला है, सबको नहीं मिला, डोंट वरी एट ऑल, राइट। सो अंकुर सर, इस पे आपका क्या कहना है? थोड़ा शॉर्ट के अंदर रखिएगा सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सर इसके अंदर जो मेरा डिस्कशन होगा कि आपने और शैलेश सर ने जो बताया, मैं थोड़ा उनसे एक स्टेप पहले बात करूंगा कि आज सबसे पहले जो आपने बताया कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, राइट, हम कहाँ पे खड़े हैं। तो गाइज आपने जो मॉक टेस्ट लिखा है, तो डेफिनेटली पॉइंट आपके लिए वैलिड है। मॉक टेस्ट नहीं लिखा है तो उसके लिए अपन को सॉल्यूशन लाएंगे, लेकिन जो मॉक टेस्ट आपने लिखा है, तो गाइज मेरा जो आपको सभी को एक रिक्वेस्ट होगी कि आप मॉक टेस्ट जो 5 मॉक टेस्ट आपने जो लिखा है उसका एनालिसिस करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्वांट का सेक्शन 5 मॉक टेस्ट के अंदर लिखा होगा, गाइज वहां से कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करिए। आपका मार्क्स इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी आया है भूल जाइए उनको, लेकिन आप सोचिए कि क्या जियोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन थे, क्या आप उसको सही कर पाए थे? क्या एल्जेब्रा के सारे क्वेश्चंस को आप गलत किया था?
क्या अरिथमेटिक के अंदर परसेंटेज के सारे क्वेश्चन को आप कर गए थे? ऐसा कुछ जो आपको एक लाइन मिलेगी, तो गाइस अगले मॉक टेस्ट के अंदर अपन जो टेंजिबल या व्हाटएवर जो टारगेट्स वी आर टेकिंग, तो हम वहां पे सोचेंगे कि सर परसेंटेज के अंदर में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल, या तो नंबर सिस्टम के अंदर, या तो फॉर एग्जांपल जियोमेट्री, मॉडर्न मैथमेटिक्स, व्हाटएवर टॉपिक्स के अंदर सर आई एम वेरी गुड, लेकिन सर मैं ऑलवेज एलजेब्रा के अंदर पिट जाता हूं। तो सर मैं कॉन्शियसली कोशिश करूंगा कि सर अगले मॉक टेस्ट के अंदर एलजेब्रा के अंदर में 2 क्वेश्चन सही करके निकालूंगा, कुछ भी हो जाएगा। क्या कर सकते हैं दोस्त? एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाबर आजम जिस दिन खेलता था ना, किसी के कंट्रोल में वो नहीं था, और सब लोगों को लगता था कि तो फाड़ देंगे, पता नहीं क्या कर देगा क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर। आज वो ढीला हो गया है। उसका रीजन है कि कंटिन्यूअसली लोग उसको स्टडी कर रहा है, उसको रीड कर रहे हैं कि वो कहां पे गलती कर सकता है, वो कहां पे अच्छा है, वहां पे अटैक करेंगे। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर ने जो पहला टॉपिक, सबसे पहला पॉइंट इसलिए रखा है कि आप कहां पे हो वो सोचना और समझना बहुत जरूरी है दोस्त, तब जाके पता चलेगा कि हमको कौन सी मेडिसिन लेनी है। प्लीज तो इसको एनालिसिस करिए, दैट इज ओनली द माय यहाँ पे, राइट सर? डन डन डन, ठीक है, थैंक यू। सो थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो पहली बात, वेयर आई एम स्टैंडिंग, दैट्स पॉइंट नंबर 2। बेस्ड ऑन दैट, उसके बेस पे ही आप गेम प्लान सेट कर पाएंगे, उसके बेस पे ही आप गेम प्लान सेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सर आपका गेम प्लान कहने का मतलब क्या है? मेरा गेम प्लान कहने का मतलब ये है, लेट्स से मैं किसी से अगर मान लो बात कर रहा हूं, राइट, स्टूडेंट्स का कंसर्न ये हो सकता है, सर मुझे आरसी में, मैं मैथ्स की बात, मैं वर्बल की बात करूंगा या सर एलआरडीए की बात करेंगे, मुझे आरसी कॉम्प्रिहेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉक देते वक्त स्कोर नहीं आता है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसकी? इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है? एंजाइटी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन द क्लॉक इज टिकिंग, ये प्रॉब्लम आएगी। इस बंदे की दूसरी प्रॉब्लम क्या है? इस बंदे की दूसरी प्रॉब्लम है अपने एकदम से, मतलब कहते हैं ना वो एकदम, हम लोग रियलिटी को छोड़ के हम एकदम यूटोपिक वर्ल्ड में जा रहे हैं, हम रियलिटी को छोड़ के एकदम ड्रीम वर्ल्ड में चले गए। मेरे शायद मार्क्स आ रहे हैं 10 और मैं चाहता हूं कि मैं 24 क्वेश्चन सॉल्व कर लूं पूरे की पूरे। नहीं कर रहे, आपके लिए सारे क्वेश्चंस नहीं बने हैं। आपको पहले 10 से 20 पे आना पड़ेगा, 20 से 30 पे आना पड़ेगा। 10 से 20 का गेम प्लान क्या होगा? 10 से 20 का गेम प्लान होगा, मैं सिर्फ सॉल्व करूंगा लेट्स से 10 क्वेश्चंस, मेरा गेम प्लान है। लेट्स से मैं शिवांशु से आज बात कर रहा था, राइट सर, स्कोर अच्छा बढ़ रहा है, तो शिवांशु के लिए गेम प्लान क्या होगा? शायद कि मुझे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, देयर इज अ प्रॉब्लम। सो द पॉइंट इज, धीरे धीरे आपको बढ़ना पड़ेगा, राइट। आई एम डिस्कसिंग, राइट, से समवन इज सेइंग कि मैं सेकंड 2 आरसी से अब तीसरे पे आ रहा हूं। मैं कहीं कितने टाइम तक तो मैंने रोक के रखा है तीसरे आरसी पे या चौथे आरसी पे, मत जाओ, बिकॉज सबके एस्पिरेशंस अलग होंगे, राइट। इसीलिए आपका गेम प्लान इस हिसाब से आएगा। दूसरा गेम प्लान, अगर मैं क्वांट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो क्वांट पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा गेम प्लान क्या होगा? मेरा क्वांट्स के लिए शायद गेम प्लान ये होगा कि मेरे को लेट्स से ज्योमेट्री मेरी वीक है, मेरी ज्योमेट्री वीक है, और प्लस मेरा अरिथमेटिक अलजेब्रा स्ट्रांग है। तो बंदा अगर मान लो मेरे को बोल रहा है मेरा अरिथमेटिक स्ट्रांग है और मेरा जियोमेट्री वीक है और मेरा अलजेब्रा जो है वो भी स्ट्रांग है, तो इसका गेम प्लान कभी ये नहीं हो सकता है कि अरिथमेटिक और अलजेब्रा को और स्ट्रांग कर। नहीं, गेम प्लान क्या होगा? तेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ है। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं भर भर के भाई साहब, अब वो ज्योमेट्री के जब क्वेश्चंस आते हैं तो तेरी अपॉर्चुनिटी देख मेरे भाई, इसको और स्ट्रेंथन करने से क्या होगा, राइट। एलआरडीए के अंदर अगर शैलेश सर बात कर रहे हैं, एलआरडीए के अंदर अगर शैलेश सर बात करेंगे, तो एलआरडीए के अंदर शैलेश सर यही बोलेंगे, बेटा 40 मिनट में 2 सेट कर सकता है ढंग से, तो 2 ही सेट कर। अच्छा 2 नहीं कर सकता, 1 सेट कर सकता है 6 क्वेश्चन वाला, तो 1 ही सेट कर, क्योंकि 18 नंबर अगर तेरे आ गए मेरे भाई, तो भी तू अच्छा खासा 75 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल पे पहुंच जाएगा। तो पॉइंट इज दैट हैज टू बी द गेम प्लान, बट ये गेम प्लान सबके लिए नहीं होगा सेट। आपको गेम प्लान सेट करने के लिए आपकी एग्जिस्टिंग देखना पड़ेगा, और जब आप एग्जिस्टिंग देखेंगे, अच्छा एक चीज और मैं बोल देता हूं, 2 या 3 मॉक के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं होगा। मैं फिर बता देता हूं, 2 या 3, हिंदुस्तान के अंदर पूरी जनता अभी तुम्हारी तरह कंसर्न कर रही होगी, हिंदुस्तान के अंदर सारे स्टूडेंट्स अभी तुम्हारे साथ बैठ रहे होंगे इस चीज के लिए, सबकी यही हालत होगी, गला सबका सूखता है, और क्या कहते हैं वो, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और उसका सोल्यूशन यही है, अपना गेम प्लान बनाओ और मॉक दो। आप ये मॉक खत्म करो। देखो हमने आपको जो कमिट किया था 10 मॉक, एंड हम आपको 10 से भी ज्यादा मॉक्स देंगे, सो डोंट वरी एट ऑल, मैं आपको 10 से ज्यादा मॉक दे दूंगा, बट मैं जब 10 से अगला मॉक जब दूंगा, मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ऑन करूंगा जिन लोगों ने 10 कर रखे होंगे। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। अंकुर सर, ओवर टू यू।
यस, तो सर आप गेम प्लान के अंदर जो डिस्कस कर रहे थे, फॉर एग्जांपल सर कि जियोमेट्री के अंदर मैं वीक हूँ राइट नाउ, जो अपन गेम प्लान की बात करें आपको पता चल गया, वंडरफुल राइट, कि सर मेरा जियोमेट्री वीक है। अब हम डायरेक्ट जियोमेट्री हमारा वीक है तो सर मैं 2D 3D ट्रिगोनोमेट्री उसके अंदर जंप नहीं मारूंगा। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर मेरे पास एनालिसिस है, आई नो द डेटा कि सर जियोमेट्री के अंदर ऑलवेज मुझे कुछ और नहीं पता है, लेकिन सर ट्राइंगल और सर्कल में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जिन्हें मेरी ईच एंड एवरी क्लास के अंदर मैं चिल्लाता हूँ कि दोस्त मत भागिए उन सब्जेक्ट उन टॉपिक के पीछे जहां से एक ही क्वेश्चन आता है, या तो बहुत आपका टाइम कंज्यूम कर जाने वाला है। दोस्त आपकी 20 साल की जिंदगी के अंदर आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आया, लास्ट 20 दिन में कुछ भी नहीं होने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो आपको जो जान लगानी है, मैं सर ट्राइंगल और सर्कल को मजबूत कर लूंगा, सर कुछ भी हो जाए वहां से मैं मार्क्स नहीं जाने दूंगा। तो आप जो गेम प्लान बना रहे हो तो अकॉर्डिंगली बनाना कि सर मेरा एल्जेब्रा वीक है तो सर आई विल डू ओनली लिनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मॉड्यूलस एंड सर अपना प्रोग्रेशन ग्राफ्स हो गया, सॉरी फंक्शन हो गया, बहुत बड़ी बात होगी, दैट्स इट। सर मैं बाइनोमियल थ्योरम को छोड़ दूंगा, मैं टच भी नहीं करूंगा भाई, मैं उसको टच ही नहीं करूंगा। शैलेश सर, आपसे मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये रहेगा कि स्टूडेंट का LRDA के अंदर जो फ्लक्चुएशन मेरे को VRC के अंदर भी आता है, तो आपसे मेरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के लिए रहेगा शैलेश सर, कि मेरे को लेट्स से एज ऑफ नाउ 90% लाने हैं, पॉइंट नंबर 1 राइट। 90% लाने के लिए मुझे एज ऑफ नाउ क्या वो दो चीज करनी चाहिए? मुझे प्रैक्टिस तो ठीक है हमें करना है, सो प्रैक्टिस के अंदर भी शैलेश सर आपसे जानना चाहूंगा दैट आपका अप्रोच, क्योंकि आप खुद सेट सॉल्व करते हैं LRDI के, और मैंने आपको देखा है कि आप एक एक सेट के अंदर एक एक घंटा अपने को भी लगता है चीजें करने के लिए, कई बार चीजें समझ में नहीं आता है। तो व्हाट इज योर अप्रोच जब आप सेट सॉल्व कर रहे होते हैं? तो बिकॉज मैं चाहता हूं स्टूडेंट को वो अप्रोच से चलना। राइट, सो सर मैंने भी मतलब अभी मेंटरिंग सेशन चल रहा है तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कनेक्ट किया है राइट। सो सबसे पहले गेम प्लान के अंदर जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, क्योंकि आज मैं रिधिका से भी बात कर रहा था, तो रिधिका मतलब, और रिधिका नहीं बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वो ज्यादा करें। जैसे आपने भी बोला कि 20 क्वेश्चंस LRDI के अंदर है और 20 में से यार अगर आप 15-16 को अटेम्प्ट कर रहे हो देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम राइट। आपका मॉक में आज नहीं भाई 2 महीने के बाद भी स्कोर नहीं बनने वाला अगर आप 16-17 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो अभी सेकंड, थर्ड और फिफ्थ मॉक के अंदर। सो योर गेम प्लान शुड बी जस्ट यार देखो, अगर आपने एक सेट कंप्लीट किया, यू हैव अ 4 सेट। अपना यहाँ पे LRDI के अंदर क्वांट की तरह नहीं है कि 2 मिनट में क्वेश्चन देखा और पता चलेगा कि ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता राइट। सॉरी अंकुर सर, बट ये है कि वहां पे 2 मिनट के अंदर आप एनालाइज कर पाओगे कि यार मेरा क्या होने वाला है ये क्वेश्चन के अंदर। बट LRDI के अंदर अगर आप सेट में घुस गए और अगर आपने 10-15 मिनट तक भी डिसाइड नहीं कर पाए कि ये सेट में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तो भाई आपका गेम बन जाएगा राइट। सो शैलेश सर, ये चीज बिल्कुल सही बात है आपकी कि हमने 15 मिनट दे दिए, अभी भी हम समझ नहीं पाए। तो ये समझने के कुछ क्लूज मिलते हैं जब हम शुरू के 5-7 मिनट जाते हैं तो? राइट तो सर इसमें 2 चीजें मैं मतलब आपको बताऊंगा राइट। ये ऑलमोस्ट इतने सालों का आप एक्सपीरियंस बोल दो या एनालिसिस बोल दो, गाइस हमेशा ना एक एनालिसिस, क्योंकि मैं भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट के, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि मैं भी मॉक सॉल्व करता हूं ताकि मुझे पता चले कि यार आपके लिए मैं क्या बेस्ट लेके आ सकता हूं राइट। और ऑलरेडी जो मेरे ये जो प्रैक्टिस सेशन जो देख रहे होंगे, जितने भी अटेंड कर रहे हो, आपको मतलब आप मुझे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रैक्टिस सेशन के अंदर राइट। सो मेरा एक एनालिसिस है यार, मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज लिखे हैं, तो मेरा एक एनालिसिस है कि अगर जो आप बिगनर्स हो, अगर आपको लगता है मैं ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहा हूं, तो डोंट गो फॉर 3 सेट्स है ना। क्योंकि अभी भी शिवांशु का मैसेज आया था सर 3 सेट पे नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं 2 सेट तक जा रहा हूं। ठीक है शिवांशु, उस पे भी आते हैं, बट 2 पे पहले अपने आप को 100% एक्यूरेसी पे रखो कि 2 सेट तो मैं कर रहा हूं, दैन गुड। वो ऑलमोस्ट अगर आप 2 सेट कर रहे हो तो यू आर टचिंग 95+ परसेंटाइल राइट गाइस। क्योंकि यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं, इफ यू क्रैक 1 सेट देन यू विल गेट 75 to 80 परसेंटाइल, इफ यू क्रैक 2 सेट्स देन यू विल गेट 90 to 95 परसेंटाइल, एंड 2.5 या 3 तक पहुंच जाते हो, मींस अगर 10 से 11 क्वेश्चन सही कर लेते हो यू विल गेट 99 परसेंटाइल इन एलआरडी राइट। सो आपको स्ट्रेटेजिकली जाना चाहिए। मैंने पहले ही बोला कि यार 5 किलोमीटर की रेस में पहले दिन मैं प्रैक्टिस के अंदर नहीं दौड़ सकता, वहां पे मुझे दौड़ना पड़ेगा, बट उसके लिए मुझे स्लोली ग्रेजुअली अपने आप को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यश, तुम्हारे इस बात का आंसर तो मैं भी दे दूंगा। जब तुमने बोला हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सेट इज इजी और नॉट राइट, तो मैं आपको बताता हूं। सो पहली बात, इजी तो कुछ है नहीं। अच्छा, आइडेंटिफाई सेट इज इजी और नॉट, उसका एक ही सॉल्यूशन जो है अभी उस दिन, सो ये वही बंदा कर पाएगा जिसने प्रैक्टिस करी है, पॉइंट नंबर 1।
उस दिन वो सेट कभी जिंदगी में मत उठाना जो सेट तुम्हारे से अभी नहीं हुआ है। हम कई बार 3 वेरिएबल वाले या 4 वेरिएबल वाले सेट उठा लेते हैं, यार तुम्हारे से कभी यहां पर 4 वेरिएबल वाला सेट नहीं हुआ, वहां कैसे हो जाएगा? उस दिन रजनीकांत की आत्मा नहीं आएगी, उस दिन आविष्कार कुछ नया नहीं होगा। सो यही आपका आइडेंटिफिकेशन है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है? राइट। ओके, सो दूसरा मैं बोल रहा था कि भाई पहले 4 क्वेश्चन वाले सेट उठाओ। जो मैं बोल रहा हूँ, हमेशा पेपर को पहले सेट से चालू मत करो, ठीक है? इस बार मॉक 5 के अंदर मैंने चेंजेस किए थे, इजी सेट ऊपर रख दिए थे, टफ सेट नीचे रखे थे, क्योंकि मैं बहुत सारों को ये गेम प्लान बता चुका था, राइट? तो इस बार मैंने ट्विक कर लिया था। बट गाइस रैंडमली आप, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट के सेट वो मॉक लिखे, बहुत सारे सेट देखे, राइट? तो गो विथ 4 क्वेश्चंस वाले सेट, है ना? फर्स्ट गो विथ, वो कंपैरेटिव टू इजी होता है, कंपैरेटिव टू आपका कम टाइम कंज्यूम करता है। दूसरा गेम प्लान ऐसा होना चाहिए, अगर 6 क्वेश्चन वाला सेट आपने उठा भी लिया, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, बीच में ईगो आ जाता है। 6 क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक ये सेट को मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई 3 क्वेश्चन हो गए 10 मिनट में, बहुत अच्छा कर लिया है, बाकी 3 क्वेश्चन को छोड़ो और नए सेट पे चले जाओ, राइट? तो ये आपको हर पेपर के अंदर ये सारी चीजें सोच के पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और कभी भी अभी आप मॉक, अगर मैं 5 मॉक तक अगर आप बिटवीन 25 to 50 के बीच में अगर आपका स्कोर रहा है, 25 to 60 के बीच में हो रहा है, अभी भी मैं बोल रहा हूं 2 ही सेट लिखो गाइस, 2 ही सेट लिखो, मतलब उतने परसेंटाइल पे जा रहे हो, 2 ही सेट लिखो और ट्राई की 100% एक्यूरेसी के साथ करें। और यहां पे ऐसा है कि अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ करोगे तो 8 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन तो मैं सही कर दूंगा गाइस, राइट? एक आध गलती से करेक्ट गलत हो गया तो भी आप 75-80 परसेंटाइल को हिट कर दोगे। Done. और फिर आगे बढ़ना है आपको। So first thing is, where are we standing? Second is game plan. Now coming on to the third thing, राम श्याम एंड घनश्याम, राइट? सर ये राम श्याम घनश्याम क्या है? देखिए, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ, ये राम कौन है, ये श्याम कौन है और ये घनश्याम कौन है, और इनके प्लान क्या क्या होंगे, राइट? सो हम तीनों इस चीज के ऊपर बात करेंगे, ध्यान से सुनना। सो राम वो है जिसने, मैं इसके पहले फीचर्स लिख देता हूं राम के। सो राम के क्या क्या फीचर्स हैं मैं उसके ऊपर बात करता हूं। हमने काफी कुछ चीजें वैसे बोल दी हैं। राम वो है जिसने 100% सारी क्लासेस अटेंड करी हैं। राम वो है जिसने शिद्दत से सारे क्वेश्चंस रेगुलर बेस पे सॉल्व किए हैं। राम वो है जिसने मॉक रेगुलर दी है। राम वो है जिसने मॉक का एनालिसिस किया है। राम वो है, वो प्राणी है जिसने डाउट्स भी अगर आए हैं या जो भी कंसर्न आए हैं वो सॉल्व कराए हैं। दैट्स पॉइंट नंबर 1, वो है राम अंकल। श्याम वो है जो बेचारे कॉलेज की वजह से शायद चीजों को नहीं कर पाए, इन्होंने किया है बट 50-50, राइट? कभी किया कभी नहीं किया, 3 दिन मोटिवेट रहे, चौथे दिन डिमोटिवेट हो गए, 5 मॉक में से 2 मॉक किए फिर नहीं हुए, डाउट कभी हुए कभी नहीं हुए, क्लासेस कभी करी कभी नहीं करी। और घनश्याम तो भैया घनश्याम ही है। ये घनश्याम वो है जिन्होंने बस, हमने सिर्फ ठप्पा लगा दिया है कि हम कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ ये कैट की स्टैंपिंग करने वाले हैं ताकि मार्केट में अपनी इज्जत बनी रहे। भाई साहब क्या कर रहा है, कैट की प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो मेरा पॉइंट आज के सेशन में क्या है, ये राम जो है, क्या ये हमारे इंटरवेंशन से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, देखो मैं अगेन बोलता हूं, सब बंदा सब कुछ नहीं कर सकता और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें बात कर रहा हूं। मैं चाहे को तो बहुत चीजें बोल सकता हूं, सब आयम में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सो राम कौन है? शालिनी बोल रही है हम तो श्याम है सर। राम कौन है? राम वो है जिसको हम लोग क्या 95 परसेंटाइल प्लस की बात कर सकते हैं या नहीं, ये है हमारे राम। श्याम वो है जिनको मैं चाहता हूं, लाइन बिटवीन राम एंड श्याम। श्याम वो है जिनसे मैं बात कर रहा हूं कि भाई साहब तुम अभी सिर्फ कोशिश ये करो कि तुम 80 to 85 की बात करो, ठीक है? और घनश्याम वो है कि भाई साहब आप एटलीस्ट ये देख लो कि आप इस कैटेगरी तक जाना चाहते हो या नहीं। इनके लिए मैं परसेंटाइल मार्क नहीं कर रहा हूं बिकॉज 80-85 से नीचे कुछ नहीं है, बट द पॉइंट इज मैं घनश्याम को ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपको इस तरफ जाना है तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ जड़ी बूटी है। सो मैं राम श्याम घनश्याम के लिए एक चीज बोल देता हूं। सो द पॉइंट इज, बिफोर आई स्टार्ट विद राम श्याम घनश्याम, अंकुर सर पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राम को क्वांट्स में क्या करना चाहिए, श्याम को क्या करना चाहिए और घनश्याम को क्या करना चाहिए। फिर मैं शैलेश सर आपके पास आऊंगा और फिर मैं वर्बल एबिलिटी की बात करूंगा। सो स्टार्ट अंकुर सर प्लीज।
मैं सर घनश्याम से बात करता हूँ बिकॉज वो प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। एंड मैथमेटिक्स के अंदर देखो हम लोग कई बार ट्राई करते हैं, राइट। आई एम प्लानिंग कि बहुत जल्दी आई विल अनाउंस वन सेशन की जहाँ पे जो घनश्याम जैसे स्टूडेंट है, राइट, कि कई सर हमको कई प्रॉब्लम आती है कि सर हमको फॉर्मूलाज याद नहीं है, सर हमको कंसेप्ट याद नहीं है, कई जगह पे हम लॉजिक के अंदर फंस जाते हैं। गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, बिलीव मी, आप एनालिसिस कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिलता है। दोस्त, हिंदुस्तान के अंदर से जितने भी बच्चे केट के एग्जाम लिखते हैं, केट एग्जाम जो पेपर सेट होता है, कंसिडर कि उसके अंदर एक बीए आर्ट्स का स्टूडेंट भी एग्जाम देते होंगे, एक कॉमर्स का स्टूडेंट भी एग्जाम देता होगा, एक साइंस का स्टूडेंट भी एग्जाम देता होगा। गाइस, आर्ट्स का स्टूडेंट भी एल्जेब्रा का क्वेश्चन कर पाए वैसा क्वेश्चंस भी वहां पे होता है। हम क्या करते हैं कि सर हमारा प्रॉब्लम क्या है कि सर हम इक्वेशन से ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। गाइस, कई बार वहां पे ऐसा होता है कि जुगाड़ से आपका क्वेश्चन हो जाता है। जो एफ का फंक्शन का जो क्वेश्चन आते हैं, अब कई बार आपका ऐसा होगा कि आप फंक्शन के अंदर एक्स की कुछ भी वैल्यू प्रेडिक्ट करके आप चालू हो जाओ, लगभग आपको आंसर मिल जाएगा। जो सीरीज आती है, जो एल्जेब्रा की जो सीरीज आती है, उसके अंदर कई बार आप कुछ नंबर रख के चलेंगे तो आपकी कुछ पैटर्न्स बन जाती है। गाइस, जो घनश्याम की मैं बात करूं तो आपको उन क्वेश्चन को पकड़ना है क्वांट के अंदर जाके। आपको मिनिमम टू मिनिमम दोस्त 0 क्वेश्चन आप करके आएंगे ना, 0 मार्क्स लेके आएंगे ना, आप नेगेटिव नहीं करेंगे, जय माता जी नहीं करेंगे, आप 0 मार्क्स लेके आएंगे, फिर भी आप 30% लाएंगे। 0 मार्क्स पे आप 30% ला सकते हो दोस्त। मेरा कहने का मतलब है कि आप 4 से 5 क्वेश्चन ओनली सही कर दो दोस्त, आप 70% कूद जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, 70% आप क्रॉस कर जाएंगे दोस्त। 4 से 5 क्वेश्चन जुगाड़ लगाना है, बस जस्ट जुगाड़ लगाना है दोस्त, क्वेश्चन हो जाएगा। दिस इज स्पेशली फॉर द घनश्याम, राइट। मैं श्याम की बात करूं, शॉर्ट के अंदर थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज आई नो कि यही श्याम और यही घनश्याम वीआरसी और शैलेश सर के लिए भी होंगे, राइट। सो मैं श्याम की जो बात करूं तो उनको जस्ट इंप्रूव करना चाहिए कि सर मैं 7 to 8 क्वेश्चन सही कर पा रहा हूं, जो मैं कंसिडर कि आप 80 to 85% ला पा रहे हो। 8 से 10 क्वेश्चन करने से आपका बिल्कुल 80 to 85% आ जाएंगे रियल केट के अंदर, राइट। सो मैं क्या सर थोड़ा इसको इंप्रूव करूं। गाइस, आपको मेक श्योर करना है कि आपको पर क्वेश्चन 3 मिनट मिलता है। 22 क्वेश्चन आपके क्वांट के अंदर होंगे। 60 जो आपको वहां पे जो 40 मिनट्स आपको जो वहां पे दिया जाता है, राइट, उसके अंदर आपको जो भी रिस्पेक्टिव टाइम मिलता है, आपको उस टाइम का यूटिलाइज करना है कि सर मुझे 10 क्वेश्चन ही सही करना है, लेकिन मुझे मैक्सिमम टाइम वहां पे यूटिलाइज करना है। मैं पहले 22 आउट ऑफ 22 क्वेश्चन देख लूंगा, मैं समझ लूंगा कि इसमें से कौन से क्वेश्चन को मुझे छूना है, राइट। सो ये मेक श्योर करेंगे कि सर मैं कुछ भी करके 10 क्वेश्चन को क्रॉस कर जाओ। और इसके लिए मैं बता रहा हूं दोस्त, अरिथमेटिक को थोड़ा प्रॉपर कर लीजिए, थोड़ा टाइम लगा दीजिए, बिकॉज अरिथमेटिक के अंदर एक भी इक्वेशन नहीं है। अरिथमेटिक के अंदर एक भी इक्वेशन नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल आपको परसेंटेज की बात करूं तो एक ही इक्वेशन है। मैं आपको रेशियो की बात करूं तो इक्वेशन ही नहीं है। एवरेज के अंदर एक छोटी सी इक्वेशन आती है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर 3 इक्वेशन है, वो रेलवे वाला, ट्रेन वाला, पटरी वाला, वो क्वेश्चन भी छोड़ देंगे, राइट। 11 क्वेश्चन आने वाला है अरिथमेटिक में से, तो वो भी अपन बहुत इजीली कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है। और 10 क्वेश्चन जो आपका अरिथमेटिक में से आएगा, मैं पक्का दोस्त बता रहा हूं कि 4 से 5 क्वेश्चन इजी होगा, 4 से 5 टफ होगा। बिल्कुल ऐसा मत चलना कि सर मैं अरिथमेटिक पूरा तोड़ के आऊंगा, नहीं आएंगे, हवा निकल जाएगी, मैं बता रहा हूं, राइट। सो मेक श्योर करना कि आप सभी में मेहनत करेंगे, लेकिन अरिथमेटिक प्रॉपर कर लो, आपको एटलीस्ट बूस्ट कर देंगे। मैं तो शाम की बात कर रहा हूं, मैं शाम की बात कर रहा हूं, राइट। एंड इसके साथ साथ आप बाकी जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसको, आई थिंक मेरा ऐसा मानना है, दिस इज माई थॉट्स, दिस इज माय एक्सपीरियंस। भाई एग्जाम के बाद मेरी गर्दन मत पकड़ लेना कि सर आपने क्या ज्ञान दिया था और एग्जाम में क्या हो गया, वहां पे मेरा कोई रिलेटिव नहीं हो, मैं पहले बता देता हूँ, राइट। दिस इज द एक्सपीरियंस, राइट। सो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपको मॉडर्न मैथमेटिक्स को एक बार छोड़ने की जरूरत पड़े तो छोड़ देना बिल्कुल। अगेन जियोमेट्री, आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना, 10 साल के पेपर उठा देना, आपको जहां पे भी डायग्राम दिखता है, कुछ भी आपको ट्राइंगल सर्कल जैसा दिखता है, होगा ही होगा, होगा ही होगा। पाइथागोरस अंकल को बिल्कुल सेट कर देना। एक क्वेश्चन मिनिमम टू मिनिमम वहां से आएगा आएगा। ट्राइंगल की 3 प्रॉपर्टी है, अच्छे से कर लेना, एक क्वेश्चन दोस्त आएगा आएगा। मिनिमम टू मिनिमम इतना करके जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं दोस्त कि आप घनश्याम में से श्याम बन जाएंगे। और राम के लिए मैं बात करूं तो दोस्त बिल्कुल आप लोगों को 100% प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज आप 95+ जो अभी ला पा रहे हो, तो आपको, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कोई लॉजिक में कमी होगी, आपकी कोई फंडास के अंदर कमी होगी। अब आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करना है। गाइस, आपको आपकी खुद की जो पर्सनल कार है, आप 140 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से चला सकते हो। आप कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, लेकिन आपको मैं बोलूंगा आप मेरी कार पे बैठ जाओ मेरे दोस्त, आप 140 पे
पे नहीं चला सकते पहली बार। आर यू विथ मी? उसके लिए प्रैक्टिस बनती है दोस्त, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको नहीं पता है कि उसके अंदर क्या ब्रेक है, क्या क्लच है, क्या एक्सेलेटर है, उसका कितना कंट्रोल है, तो दोस्त प्रैक्टिस बनती है। तो मैं राम के लिए ओनली सजेशन दूंगा कि बॉस आपको ओनली एंड ओनली क्वेश्चन ही सोल्व करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बिकॉज आई बिलीव कि आप 95+ पे बैठे हो, तो आई एम श्योर कि भाई आपको कोई इक्वेशन की चैलेंजेस नहीं आती होगी, फॉर्मूलाज की चैलेंजेस नहीं आती होगी, आपका बेसिक्स इंप्रूव होगा, तब जाके आप यहां तक पहुंचे होंगे। तो डेफिनेटली आपको टाइप ऑफ द क्वेश्चन करना है और उनसे आपका लॉजिक को और इंप्रूव करना है, राइट। अनुष्ठा, एलजेब्रा को बेटा लास्ट प्रायोरिटी देना, बिकॉज एलजेब्रा थोड़ा हिलाएगा इफ यू आर नॉट इंजीनियर, राइट। तो उसको लास्ट प्रायोरिटी देना। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी अरिथमेटिक, सेकंड शुड बी जियोमेट्री, थर्ड शुड बी नंबर सिस्टम, एंड फोर्थ शुड बी योर algebra, and fifth should be your modern mathematics according to me, right। आपको इस सीक्वेंस के अंदर प्रिपरेशन करनी चाहिए। आई थिंक आपको ये थोड़ा हेल्प कर जाएगा। यस प्रशांत सर, ओवर टू यू। शैलेश सर, आई थिंक Okay, so I'll take it forward. So I'll go with Ram. ना सबसे मैं पहले राम के साथ जाऊंगा, फिर श्याम, फिर घनश्याम। ओके, सो भाई जो भी स्टूडेंट्स अभी भी मतलब 90-95+ को हिट कर रहे हो, सो माय सजेशन इज दैट कि एक्यूरेसी को मेंटेन रखो। आप जितने सेट कर रहे हो, राइट, अगर आप 2 सेट, मैंने बोला 2 सेट कर लोगे, आप आराम से इससे पार चले जाओगे, ठीक है। नाउ यू हैव टू एनालाइज कि भाई डिफरेंट, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा बताए, आप एक एनालिसिस करो जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि यार मेरे कोई सेट, कोई एग्जाम के अंदर मेरे 95+ आ रहे, किसी में नहीं आ रहे, तो जिस मॉक के अंदर वो सेट नहीं आ रहे, तो उसमें चेक करो कि भाई वो कौन से टॉपिक के क्वेश्चन मैंने पिक किए थे, राइट, और वो मैं नहीं कर पाया हूं। तो उसी टॉपिक को LOD 2 और LOD 3 लेवल के उसी टॉपिक के सारे क्वेश्चन जहां से मिल रहे हैं वहां से लेके प्रैक्टिस करो, क्योंकि राम के लिए प्रैक्टिस इज अ मस्ट, राइट। आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा शार्पनेस आएगा, राइट। तो ऑलरेडी आप 90-95 पे बैठे हो, तो आपको जस्ट 2 से 3 क्वेश्चन इंक्रीज करने की जरूरत है, जस्ट 2 से 3 क्वेश्चन इंक्रीज करने की जरूरत है, और आपको थोड़ी एक्यूरेसी की जरूरत है, तो आप 99 तक पहुंच पाओगे, ठीक है। सेकंड, अगर मैं श्याम की बात करूं, है ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में कंप्लीट करूंगा क्योंकि प्रशांत सर को भी आगे राम श्याम घनश्याम करना है। सो श्याम की बात करूं तो अभी जो मेंटरिंग चल रहे हैं, ऑलमोस्ट आई टेक समवेयर अराउंड 10 to 50 मेंटरिंग इन लास्ट वीक, या दिस वीक, सॉरी, नॉट इन लास्ट वीक। सो सारे स्टूडेंट्स से जब मेरी बात चल रही थी, यार आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो, सो अगर आप श्याम से राम बनना है ना, तो जो भी स्टूडेंट अगर 15, 16, 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, है ना, उसमें से 6-7 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, 5-6 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, जो शाम की बात कर रहा हूं, जो 5-6 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, आप 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों कर रहे हो मेरे भाई, है ना। डोंट गो विद 16 क्वेश्चन, जस्ट एनालाइज कि मैं 2 ही सेट पकड़ूंगा, 2 ही सेट करूंगा, 2 सेट, दैट मींस ओनली 8 क्वेश्चन, या अगर एक 6 क्वेश्चन का सेट है, एक 4 क्वेश्चन का सेट है, तो ओनली 10 क्वेश्चन। मैं 16 क्वेश्चन तक जाऊंगा ही नहीं। सो सबसे पहले सर, है ना, क्वेश्चन ये आता है कि सर वो सेट कैसे सिलेक्ट करें। सो पहले कितना टाइम देना चाहिए सेट सिलेक्शन के अंदर। सो गिव 5 to 8 मिनट गाइस, गिव 5 to 8 मिनट्स, नो वरी एट ऑल। आप 5 मिनट्स या 8 मिनट्स दे रहे हो, उसके अंदर एनालाइज करो कि भाई कौन से 2 टाइप के सेट में कर सकता हूं। अगर जैसे ही प्रशांत सर ने बोला कि यार फोर लेयर वेन डायग्राम मैं कर ही नहीं सकता था अभी तक, और अगर वो आ गया और वो मैंने पिक कर लिया था, भाई मैं ही गलती कर रहा हूं, मैंने सेट सिलेक्शन ही सही नहीं किया। और गाइस कभी भी कोई भी पेपर का पैटर्न देखोगे, आप जब पेपर भी लिख रहे होंगे तब भी आपको वहां पे एक एनालिसिस मिलेगा। जो शाम वाले स्टूडेंट हो, आप जब कैट के पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, आपको ये मिलेगा यार एक सेट तो आपको इजी लेवल का मिलेगा ही मिलेगा, या इजी टू मॉडरेट मिलेगा, ठीक है। एक सेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इजी या इजी टू मॉडरेट, दूसरा सेट बिल्कुल इजी टू मॉडरेट होगा, थर्ड सेट मॉडरेट होगा, और इन केस क्योंकि इस बार बैंगलोर निकाल रहा है तो एक सेट होगा टफ लेवल, ठीक है। और अगर टफ लेवल का मॉक मतलब टेस्ट मैंने पकड़ लिया तो मर जाऊंगा। तो शाम वालों को ये मेरी मतलब रिक्वेस्ट है कि आपके नेगेटिव मार्क्स को अगर आप कम कर दोगे ना, नेगेटिव में से बाहर आ जाओगे, आप एक्यूरेसी पे वर्कआउट करोगे, डेफिनेटली आप 90-95 को क्रॉस कर दोगे, ठीक है।
एंड द घनश्याम वाले स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। सर अभी तक तो जस्ट हमने जिस थप्पा लगाने के लिए कैट स्टार्ट किया है, जैसे प्रशांत सर ने बोला था, इज्जत बनी रहे इसलिए स्टार्ट किया है। और अगर उनकी इच्छाएं अभी जाग रही है लास्ट 2 महीने के अंदर कि यार पहले कुछ कर लिया होता तो अच्छा होता, और अभी भी ऐसा है कि मुझे 85-90 परसेंटाइल तक पहुंचना है। सो गाइस गो विद द बेसिक्स, है ना। मैं हमेशा मेंटरिंग अंदर भी स्टूडेंट को बोलता हूं, LRDI के अंदर अभी तक जितने भी क्लास हो चुके हैं उनके रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी यू हैव, उसके अंदर जाके बेसिक्स को क्लियर करो, जो मैंने सेट करवाए हुए हैं उन्हीं सेट को रिपीट करो, राइट। और अगर कोई श्याम वाले और राम वाले स्टूडेंट भी ऐसे हैं कि उनको लगता है कि सर ना मेरा ये टॉपिक वीक जा रहा है, तो मैंने जो क्लास के अंदर वो सेट करवाए हुए, अगर आपको पीपीटी चाहिए मुझे पिंग कर देना, मैं ग्रुप में पीपीटी भेज दूंगा, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो ताकि आपको पता चलेगा भाई क्वेश्चंस किस लेवल पे लेके जा रहा है आपको, राइट। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने का ट्राई करो, राइट। सो प्रशांत सर ओवर टू यू। और गाइज अगर आफ्टर दिस सेशन भी अगर आपको क्योंकि अभी बहुत सारे चैट आ रहे हैं, शायद हम सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 1-to-1 भी कनेक्ट हो सकते हो। यस प्रशांत सर ओवर टू यू। Okay guys, so now what I'll get into, because काफी चीजें अंकुर सर और शैलेश सर ने बोल दी है। My first thing is for all the Rams be consistent. For all the Rams be consistent. That's point number 1, right? आप सब कुछ अच्छी तरीके से कर रहे हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। Wherever to whomsoever you are trusting, just be consistent. The focus still has to be this. आप अपने फोकस से कहीं पर भी नहीं हिलेंगे, right? जहां आपका फोकस हिला आप गए। Leave everything. No matter how you feel, just get up, dress up, show up. That is the objective of you, right? No matter, देखिए, a bad day, a bad mock doesn't mean that you are a bad student. A bad mock doesn't mean you are a bad student. Just believe in yourself, just trust yourself, just go with your instinct कि मैंने आज तक अच्छा किया है और मेरा best mock मेरा D-Day वाले दिन होगा. So just keep moving. That is to all the Rams out there, because you yourself are self-motivated, right? And wherever you are stuck, you have our contact details, we can discuss. For all the Shams out there, still you can target the IMs, don't worry at all. No matter where you land up, no matter where you land up, for all the Shams, just कर्म किए जा, जो मैं बारी बारी बोल रहा हूं, फल की इच्छा अभी मत रख, just कर्म किए जा, because वो कर्म करना बहुत जरूरी है आप सबको, जो आप हाफ हार्टेड कर रहे हैं। कॉलेजेस के एग्जाम आते रहेंगे, राइट, असाइनमेंट्स आते रहेंगे, तू डर मत, तू डट मत, तू बस चलता रहे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज द पॉइंट इज आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। हाँ, आपको फोकस अभी भी आराम से करना पड़ेगा, एंड रिस्ट्रिक्ट योर अटेम्प्ट, जो शैलेश सर बोल रहे थे, एक्यूरेसी पे ध्यान दो, राइट। आप एकदम से अपनी कैटेगरी को नहीं बढ़ा पाएंगे, मैं जो बोल रहा हूं, यू हैव टू वॉच। आप रैबिट बनने की कोशिश मत कीजिए, आप टॉर्टॉइस बन के रहिए, धीरे धीरे स्नेल करते हुए शायद आप उस मंजिल को पहुंचा पाएंगे। एंड अगेन बोल रहा हूं, मैंने आप सबको बोला आप एग्जाम सारे देंगे, आप ठीक है, शायद आप आईएम्स नहीं पहुंच पाओगे, बट अभी भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपके पास हैं, वो अच्छे कॉलेजेस। अच्छा, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं, शायद सब स्टूडेंट्स आईएम्स के अंदर नहीं जाएंगे, जो मैं हमेशा बोलता हूं, बट मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहता है, स्टूडेंट्स ने जितनी मेहनत करी है और स्टूडेंट का जितना कैलिबर है, क्या मैं मेंटरिंग करके उसको उस कॉलेज तक या उसको उस मंजिल तक पहुंचा सकता हूं या नहीं, बस वो मेरी प्रायोरिटी के साथ हम शाम्स को लेके चलेंगे। एंड टू ऑल द घनश्याम्स आउट देयर, अगेन बोल रहा हूं, शायद मैं बोल रहा हूं बहुत क्लियरली, ठीक है, बिकॉज अगर मैं बोल दूं तुम्हारा भी आईएम्स के अंदर हो जाएगा, तो शायद राम्स और शाम्स के लिए अच्छी न्यूज नहीं होगी, बिकॉज नहीं हो पाएगा। टू बी ऑनेस्ट विद यू, नहीं टारगेट कर सकते आप एफएमएस, नहीं टारगेट कर सकते आप एसपी जैन, नहीं टारगेट कर सकते आप अच्छे कॉलेजेस। आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट विद यू, मैं बहुत ही ऑनेस्टली और ब्लंट बोल रहा हूं, बट ऑल द घनश्याम्स आउट देयर, यू कैन स्टिल टारगेट अ डिसेंट कॉलेज फ्रॉम सिम्बायोसिस, यू कैन स्टिल टारगेट अ डिसेंट कॉलेज फ्रॉम एनएम, you can still target a decent campus as far as from IMS, or you can still target a decent B school, right? For that matter, getting into a MICA or IRMA kind of a stuff, right? So to all the Ghanshams out there, आपके पास अभी भी non-CAT exams जिंदा है, आप बने रहिए। And again, set your expectation rights to all the Ghanshams out there, be realistic to all the Ghanshams out there, and again I am talking about, अगर आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, start listening to the basics ones। अगर मैं वर्बल की बात करूं, वर्बल के अंदर अगेन इन लोगों को मैं ये बोलूंगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए, अब रीडिंग को छोड़ दो इन द सेंस, आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, दैट इज ओके, बट आपका पूरा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पे चले जाना चाहिए। आपके स्कोर में फ्लक्चुएट होता नहीं देखना चाहता, मैं आपके स्कोर फ्लक्चुएट होना नहीं देखना चाहता। टू ऑल द राम्स आउट देयर, टू ऑल द शाम्स, धीरे धीरे आगे बढ़िए,
टॉर्टॉइस स्पेस के अंदर स्पेस से बढ़िए, 8 से 10 पे जाएंगे, 10 से 12 पे जाएंगे, शायद 12 के बाद आप रुक जाएंगे। बिल्कुल, मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप अभी शायद 4 क्वेश्चन सही कर रहे होंगे टू ऑल द शाम्स। एम आई राइट? एम आई राइट टू ऑल द शाम्स? शायद 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यस और नो? बाकी सारे गलत हो जा रहे हैं, 4 सही करता हूं और 10 गलत हो जाते हैं। एम आई राइट टू ऑल द शाम्स आउट देयर? टू ऑल द शाम्स आउट देयर, एम आई राइट? तो आप 4 के बाद आप 4 सही करके 10 गलत नहीं करेंगे, आप सिर्फ 6 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और 6 क्वेश्चंस के ऊपर आगे जाएंगे। एंड टू ऑल द घनश्याम्स आउट देयर, आप लोगों से मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे ध्यान दें, आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे ध्यान दें। ये 3 चीजें आप लोगों को करनी है। शालिनी पांडे, अगेन क्वेश्चन गोज टू यू। 500 पैरा जंबल्स अगर किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम। अच्छा, टू ऑल द 100+ स्टूडेंट्स अटेंडिंग दिस सेशन, is this session making sense for you guys? Yes or no? Is this session making a sense for you guys? Right? थोड़ा सा सेशन सेंस आ रहा होगा, आई होप सो। बिकॉज मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं, बिकॉज मुझे आगे भी ये सारे सेशंस करने हैं, सो इसीलिए मेरे को ये चीज जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर ऑल द पॉजिटिव रिस्पॉन्स आउट देयर। सो इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक्स, अब मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक्स क्या। नहीं शिवांशु, तू ऐसे बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। हाँ, सो इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक्स के लिए अगर मैं बात आ रहा हूं, सो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूंगा, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ऑल द लवली फीडबैक गाइस। सो इफ आई टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक्स, एंड थैंक यू शैलेश सर फॉर सच अ लवली कोट आउट देयर, जो कि एकदम बढ़िया तरीके से एकदम झिलमिलाता हुआ आगे हमारे सामने आया है। द बिगर योर ऑब्स्टेकल, द बिगर योर फ्यूचर, डोंट गेट discouraged, keep moving forward. Just keep moving forward. The conclusion is this, the premise is this. This is the premise and this is the conclusion. That's what you need to understand guys. इस चीज के साथ आप आगे बढ़ेंगे। Just keep moving forward. ऑब्स्टेकल बहुत बड़ा है, और अगर ऑब्स्टेकल अगर बड़ा है तो उसका रिजल्ट भी आपको बहुत ही बड़ा मिलेगा, राइट? सो जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो मैं इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक्स की बात कर रहा था। उप्स, वेरी वेयर इट इज। ओके शैलेश सर, आई थिंक 2-3 स्लाइडें चली गई हमारी, चलो चल है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक्स के अंदर अगर हम बात कर रहे थे, यहाँ पर मैंने 2-3 चीजें ऐड करी थी, आई डोंट नो इफ समहाउ इट इज मिस्ड। सो इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक्स के अंदर मैं एक चीज बोल रहा था। पहली चीज, मॉक्स क्यों देना जरूरी है, राइट? मॉक्स देना जरूरी क्यों है? जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्लाइड बता रहा हूं, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, बिकॉज ये मैंने बाकी स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी, मैं आपको भी यहाँ दिखाना चाहूंगा। अंकुर सर, कल वाला एक बार सेशन लाइव यहाँ पर दिखाई देता हूँ। जस्ट अ मिनट, एक बार गाइस। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक, या हियर वी गो। ओके, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। मैं सिर्फ आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, इसके बाद एक डिटेल सेशन इसका कल आएगा। टुमारो डिटेल सेशन कमिंग अप, जिसकी सिर्फ एक ग्लिम्स, एक स्लाइड में आपको दे रहा हूं, वो चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा एज ऑफ नाउ टुडे। सो व्हाई मॉक? मॉक मेरे लिए जरूरी क्यों है? मॉक मेरे लिए जरूरी है, जो मैं बोल रहा हूं, वेयर एम आई स्टैंडिंग। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप आगे नहीं चल पाएंगे। मॉक देना जरूरी क्यों है? पॉइंट नंबर 2, मेकिंग स्ट्रेटेजीज। मैं मेरा गेम प्लान कैसे बनाऊंगा? मॉक्स को देख के। मॉक देना जरूरी क्यों है? मॉक देना मेरे को इसलिए भी जरूरी है, मुझे उस स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करना है। इसका एक डिटेल वर्जन, अ डिटेल सेशन कमिंग अप टुमारो। अंकुर सर माइट बी शेयरिंग द डिटेल्स विद यू एट द लास्ट, कि कब सेशन आ रहा है, क्या आ रहा है। बी कंफर्टेबल विद द पेपर पैटर्न। हमें पेपर पैटर्न से कंफर्टेबल होना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मॉक देना बहुत जरूरी है, राइट? स्वॉट एनालिसिस, मेरी स्वॉट एनालिसिस के लिए मुझे मॉक जरूरी है। मेरे को ये देखना जरूरी है कि अंकुर सर, शैलेश सर, प्रशांत सर ने जो स्ट्रेटेजी दे दी है वो काम कर भी रही है या नहीं। मुझे ये भी देखना जरूरी है कि एग्जाम प्रेशर के अंदर मैं किस तरीके से हैंडल कर रहा हूं। मुझे ये भी देखना जरूरी है कि इसके बाद मुझे मेरे मेंटर्स की जरूरत होगी, इसलिए मॉक देना जरूरी है। टुमारो एंड आई एम कमिंग अप विद अ डिटेल सेशन टू अंकुर सर, इज द सेशन इज टुमारो एट 9 or day after tomorrow? Tomorrow I think 6 p.m. I will share the Okay, very good. So आपको डिटेल्स मिल जाएगी tomorrow 6 p.m. I'll be तो सर coming. हम इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं कि जो रेगुलर जो क्लास चल रही है उसको डिस्टर्ब ना करें, और उसको एक्स्ट्रा टाइम में हम अरेंज करेंगे। वेरी गुड। सो हम 6 बजे मॉक का पूरा सेशन कर रहे हैं। उस सेशन के अंदर मैं आपसे ये बात करूंगा कि मॉक का एनालिसिस करना है। मॉक का एनालिसिस कैसे करना है? मॉक के अंदर प्री वर्क क्या होगा, मॉक के अंदर पोस्ट वर्क क्या होगा, मॉक हम लोग कैसे क्रिएट कर रहे हैं, मॉक हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जब हम मॉक बना रहे हैं, उसके अंदर शैलेश सर जो बारी बारी 2-3 बार बोल चुके हैं कि मैं हर एक कॉम्पिटिटर का मॉक दे रहा हूं, तो वो क्या है, क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, इसके अंदर मैं डिटेल के अंदर कल बात करूंगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक इज दिस। और अगेन जो प्रॉमिस अंकुर सर ने, मैंने या शैलेश सर ने, हम तीनों जो आपको बारी बारी बोल रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपना मॉक रेगुलर देते रहिए। और एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटेजी, यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये मानसी अपन बात करेंगे। सो एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटेजी, अगर आप नॉन कैट की बात कर रहे हो जो अपना डिस्कशन हुआ था, विल टॉक अबाउट दिस कि एनमेट एग्जाम्स कैसे देना है, स्नैप एग्जाम कैसे देना है, ऑल दिस थिंग्स विल टॉक अबाउट इट टुमारो। शालिनी पांडे, SWOT इज बेसिकली स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ। मेरी थ्रेट्स, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरे थ्रेट क्या है, वर्बल के अंदर मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है, वर्बल के अंदर मेरी वीकनेस क्या है, ये आपको मॉक से पता लगेगा। हाउ मेनी क्वेश्चन शुड अटेम्प्ट इन वर्बल एबिलिटी? विक्रम, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, राम हो, श्याम हो या घनश्याम हो। अगर आप श्याम है तो मेरे ख्याल से आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अगर आप राम है तो 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, और अगर आप घनश्याम है तो बस चलते रहिए, राइट? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा विक्रम। सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद अवर सेशन, राइट? एनमेट स्नैप मॉक्स, यस दिस विल बी प्रोवाइडेड फॉर श्योर। सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद अवर सेशन हियर, राइट? एंड नाउ whatever queries, whatever concern you have, आप हमारे से पूछ सकते हैं। ये कुछ पास्ट ईयर एनालिसिस मैंने वर्बल का किया हुआ था, उसके बाद शैलेश सर एंड अंकुर सर विल कम। हमारे पास समय थोड़ा कम है और हम अगले 15 मिनट्स के अंदर सेशन को कंप्लीट करेंगे। सो ये मैंने 5 साल का कैट का एनालिसिस किया था, जो मैं काफी बार आपको क्लासेस के अंदर बता चुका हूँ। 29%। यस अंकुर सर। मैं सर इसमें और बिफोर यू स्टार्ट दिस एनालिसिस, राइट, मैं सारे स्टूडेंट को ये बताना चाहूंगा कि भाई अभी आपके दिल के अंदर राम, श्याम और घनश्याम चलना चालू हो जाएगा, राइट? कि सर मैं राम हूं, मैं श्याम हूं और मैं घनश्याम हूं। गाइज मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर 2.5 लाख बच्चे जो केट के एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, उसमें से 2.30 लाख, 2,30,000 बच्चे घनश्याम है। जो आप श्याम हो तो भाई अपने लिए ताली बजा लेना, जो आप श्याम भी हो तो भी अपने लिए ताली बजा लेना दोस्त, मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। तो जो आप घनश्याम हो तो श्याम के अंदर आ जाना एटलीस्ट। अब श्याम में आ गए तो आप 2,30,000 बच्चों को क्रॉस कर गए, ओनली 20,000 स्टूडेंट के बीच में आपकी फाइट रह जाएगी। सो बिल्कुल नर्वस मत हो जाना कि सर राम श्याम घनश्याम में हमारा क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, देयर इज नो डाउट्स। यस सर। ओके, सो नाउ व्हाट आई एम कमिंग टू इज, राइट, हम आपको पीपीटी भेज देंगे। मैं थोड़ा स्लाइड जल्दी कर रहा हूं बिकॉज हमने काफी कुछ चीजें बोल दिया एनालिसिस को लेके। सो द फर्स्ट थिंग इज, ये मेरे कुछ वर्बल का एनालिसिस था, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, राइट? आपको अगर नहीं, आपको हम लोग ग्रुप्स के अंदर भेज देंगे, आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर एग्जैक्टली एज इट इज मैं पीपीटी भेज दूंगा। दिस इज वीआरसी का पास्ट 5 years का एनालिसिस, राइट? टोन, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन 1%, टोन बेस्ड क्वेश्चंस, right? 30% fact based, 70% idea based, right? That is this LRDI. So LRDI के अंदर आपको भेज देंगे हम लोग। So LRDI के अंदर हमने क्या किया? 2017 slot 1 easy medium difficult, 2017 slot 2 easy medium difficult. Try to get the analysis out there, try to get the analysis out there. What are my easy ones? आपको हर पेपर के अंदर easy मिलेंगे, मीडियम तो मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट? जो अगर यहाँ आप देखोगे, यहाँ पर 12 क्वेश्चन हम लोग बोल रहे हैं इजी लेवल का 2018 स्लॉट 1, राइट? ये सारी चीजें आपको हर जगह मिलेंगी। ये कुछ एनालिसिस क्वांट्स का है, ये कुछ एनालिसिस, और अंकुर सर काफी बार क्लासेस के अंदर बता चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। मेरे पास ये सबसे बड़ी चीजें हैं, जस्ट फोकस ऑन दिस। मत करो फोकस। आई नो अंकुर सर बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, बट दैट्स ओके। मैं तो कह रहा हूं इसको भी फोकस, इसको भी स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट दे देना। और टू ऑल द शाम्स योर फोकस हैज टू बी दिस, टू ऑल द शाम्स योर फोकस हैज टू बी द फर्स्ट 2 units, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं करना है आपको, राइट? सो ये आपको सब चीजें मिल जाएंगी। दिस अरिथमेटिक, अलजेब्रा, राइट? इन सबका एनालिसिस है, उसके अंदर भी आप कहां से देते हैं, हम सारी चीजें आपको भेज देंगे। सो हाउ टू बूस्ट योर स्कोर, अब मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, राइट? ये अगेन पीपीटी भेज दूंगा जो मैं आपको बोल रहा था। फॉर राम्स इट शुड बी दिस, फॉर राम्स इट शुड बी दिस, एंड फॉर शाम्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस इज एनालिसिस कैट 2021। और ये सब चीजें मैं आपको अगेन वी विल शेयर विद यू। और ये अगेन लास्ट पीपीटी, लास्ट स्लाइड जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बिफोर वी एंड द सेशन, एंड वी विल गेट द क्लोजिंग नोट्स फ्रॉम अंकुर सर एंड शैलेश सर, एंड देन मूविंग ऑन टू यू गाइस फॉर क्वेश्चन आंसर्स, राइट? सो दिस इज व्हाट द एनालिसिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स। और आपको सिर्फ फोकस एज ऑफ नाउ ये 2 साल का एनालिसिस देखना है, बिकॉज इन 2 सालों के अंदर जो चेंज हुआ है, और आई एम बैंगलोर इस हिसाब से भी पेपर चेंज कर रहा है। सो अगेन मैं यहाँ पर राम श्याम घनश्याम लिखना चाहूंगा, सो प्लीज इसको नोट कीजिएगा। टू अगेन ये मैं चाह रहा था आपसे कि ऑल द घनश्याम्स टारगेट दिस, दिस इज फॉर एज ऑफ नाउ शाम्स, दिस इज फॉर श्याम, राइट? एंड दिस इज फॉर राम एज ऑफ नाउ, राइट? अब आपको देखना है आप कितनी जल्दी किस कैटेगरी पर जाएंगे, और ये करने के लिए आपको ये स्कोर चाहिए होगा। ये स्कोर लाने के लिए टू ऑल द शाम्स आउट देयर, टू ऑल द शाम्स आउट देयर, राइट? आपको देखिए कितने क्वेश्चन करने हैं,
right? All you need is 16 odd questions. All you need is roughly 16 to 17 odd questions. This is the target we should take. Oh yes, Ankur sir, you were saying something. सेम थिंग सर, मैं बता रहा था कि भाई 20 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, 60 मार्क्स, मैं टोटल बात कर रहा हूँ, वीआरसी, एलआरडीआई और कॉन पुट टुगेदर, आप 60 मार्क्स लेके आएंगे, 20 क्वेश्चन बॉस आप 90 परसेंटाइल तक पहुंच जाएंगे। फिर काहे चिंता कर रहे हैं दोस्त, इतना क्यों टेंशन लेने की जरूरत है? जस्ट आपने अभी तक जो किया है उसको और शानदार कर दो, दैट्स इट। सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। घर पे आके सर नहीं पकड़ना है कि सर ए रे यार गए सर, ये तो गलत कर दिया, वो नहीं करना है भाई। जस्ट चिल करना है, एकदम अच्छे से रहना है, जो कर रहे हो करना है, नया कुछ भी लेना नहीं है हाथ में, नया कोई भी पंगा हाथ में नहीं लेना है, जो कर रहे हो उसको बेस्ट करो दो, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अच्छे से मेहनत करो। प्रैक्टिस इज ओनली अ सॉल्यूशन, नथिंग एल्स। कोई भी प्रशांत सर के पास ऐसा तावीज नहीं है आपको पहना दे और मार्क्स आ जाए, नहीं होने वाला है दोस्त। मेहनत, प्रैक्टिस इज ओनली द सॉल्यूशन, राइट? सो दिस इज फ्रॉम माय साइड एंड यस शैलेश सर, प्रशांत सर, यू वांट टू से एनीथिंग? So I mean, I am also done. Silas sir, please closing notes from you before we get into the students and question and answers. यस सर। सो गाइज देखो, राम श्याम एंड घनश्याम वो अपनी जगह पे है, राइट? अभी हमने राम श्याम घनश्याम बहुत कर लिया है। सो सब कोई भी अपने ऊपर मत ले लेना कि भाई मैं घनश्याम हूँ, मैं राम हूँ, क्योंकि अभी मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं तो बहुत लोवेस्ट हूँ, मैं तो बहुत ये हूँ। तो गाइज प्रशांत सर भी इस चीज को, अंकुर सर भी एग्री करेंगे कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट हमने देखे हैं जो लास्ट के 2-3 मंथ्स के अंदर प्रिपेयर करके भी वो लोग 99 परसेंटाइल को हिट करते हैं, और ये फैक्ट है। जस्ट स्टिक विद योर बेसिक्स, आप अपने बेसिक्स को पकड़ के रखो, एक्यूरेसी पे वर्कआउट करो और गिव टाइम टू कैट। आपके एग्जाम्स, कॉलेज, फ्रेंड्स, फैमिली, मैरिज, इवेंट्स, नवरात्रि, दिवाली सब आएगा, बट जस्ट आप टाइम अपने कैट को निकाल के दो, और कैट को जितना ज्यादा ये 2 महीने के अंदर टाइम दे पाओगे गाइस, उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, चाहे आप राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे घनश्याम, ठीक है? सो गिव टाइम, जस्ट डू योर बेस्ट। आप जितना टाइम दे सकते हो उतना दो, और डू प्रैक्टिस। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अपना कॉन्फिडेंस, कुछ भी हो जाए हिलना नहीं चाहिए, ठीक है? अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाओगे। यस, thank you Silas sir, Ankur sir, for coming up with this beautiful listing and a very encouraging words from you guys, and to all the students, thank you for giving the feedback. मेरे पास काफी कुछ feedbacks आ रही है, thanks a lot, and we'll come up with many more sessions. That's what we have planned, because we know this is the time you need us, and we know this is the time अगर हम लोग इस time में motivational sessions नहीं हुए तो the demotivation will again come up. So मैं again, मुझे पता है ये शायद राम श्याम घनश्याम whatever it is ये 8-10 दिन चलेगा, और जैसे ही आपका confidence low होगा, we guys will be there again for you guys, and we'll have some sessions, and we'll not have only ज्ञान। ये जिस तरीके से हमने PPT बनाया और जो concerns आप लोग आएंगे, इसी concerns को हम लेके आएंगे। And now is the time I want all you guys, give mock, be in touch, जहां भी अगर आपको लग रहा है आप कहीं पर भी stuck हैं, be in touch with all of us. Thank you Ujjwal for the lovely feedback. Thank you Khushi Patil. Thank you, and yes, you all can do it, no matter how do you feel, just get up, dress up and show up. आप सब कर सकते हैं, राइट? आप सब अच्छे कॉलेज के अंदर जा सकते हैं। अच्छे कॉलेज के अंदर बात कर रहा हूं मैं, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, वेरी गुड नाइट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू शेयर गाइस, वी आर देयर फॉर द नेक्स्ट 5 minutes. Else, thank you, good night, stay healthy, stay blessed, and keep going guys, keep going. Thank you everyone for the lovely feedback. Ankur sir, Silas sir, I'll share the feedback with you guys because there were direct message आ रहे हैं, so I'll share the feedback for you. Kalini, consistency बनाने के लिए मैं आपको help कर दूंगा, don't worry at all Shanali, we'll help you out for sure. So guys, final words for you guys कि मैं कई बार स्टूडेंट को बोलता हूँ, राइट? मैं कई बार स्टूडेंट को जो बोलता हूँ, राइट, कि भाई जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया दोस्त। क्या बात, एक बार मान लो दोस्ती, करना है मतलब करना है, दैट्स इट। कुछ भी हो जाए साला, सर मुश्किल है आसान है हमको नहीं पता है, सर तोड़ के फाड़ के निकलेंगे, दैट्स इट। थैंक यू एंड सी यू अगेन इन द मॉक, राइट? नेक्स्ट मॉक के अंदर मैं सबको देखना चाहता हूं, और आपका मॉक आएगा तो मैं बता रहा हूं आपको, हम लोग बहुत ही जल्दी वीडियो सेशन देंगे, तो ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है? थैंक यू, बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट। शिवांशु, यस शिवांशु, दैट इज in plan, not a batch. I'll discuss with you separately for sure.
Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Bye-bye. Take care, guys. Thanks for the lovely feedback. Thank you. Thanks a lot. Now just keep practicing. Just start your plan. Know where you are and start planning. Thanks. Thank you, everyone. फाड़ देंगे बिल्कुल. I want you to फाड़ो आप mocks के अंदर. Thank you. Just give your best. Yeah, that's what I know. That's what I want to know, that you have to give your best. Thank you, everyone. Bye-bye. Take care. Thanks a lot, everyone. Bye-bye. Thank you, Salesh sir. Thank you, Ankur sir. Bye-bye. Take care. Thank you. Okay, sir. Thank you. Bye. Thank you, guys. Bye. Thank you. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.